Hello. Now we got. Just a second. Yes. So I'll be presenting now, and kindly let me know when the screen is visible. Okay. Is it visible now? Yeah, it's visible. Okay. दीपांशु अपना ईमेल एड्रेस डाल दो यार कमेंट में। मुझे मेल आते हैं यार। आते तुमको मेल हाँ मेरे को आता है। या फिर आपको परमिशन क्यों मांग रहा था अभी अभी इन करते टाइम पे? मैं भेज देता हूँ। इतना स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। विजिबल हो रहा है ना? हाँ हाँ हाँ, दिख रहा स्क्रीन पे। हाँ ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ओके। हाँ हाँ, फर्स्ट ही करते हैं, सीक्वेंस ही करते हैं। ठीक है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वैसे फर्स्ट वाला? जिसने भी लिखा है हरी का, हरी को बोल दो। हरी? Okay, okay. Yeah, I'm there. Yeah. Just So open. please explain how you started. What can come Mm-hmm. under intro? Yeah, open please. Yeah. So sorry guys, it's a messy handwriting, but I try to include make it best. So the concept of global village, it's just how interconnected we are. So the term coined by Marshall McLuhan, and this is the original view of it. Okay, so when I read, there are several other inside, but exact view is almost like this because the world culture is becoming shrinking, and at the same time they are expanding. Uh, Hello. Is it just me or Hari's voice is breaking? Hello. Faces. So, bro, can you go? I mean, Is it just me or yeah, Hari's voice is breaking? is my voice audible, bro? आ Is रहा my है। audible? मुझे अभी बीच में ऐसा लगा जैसे यस यस। वॉइस ब्रेक कर रही थी। Okay? मेरे Is साथ ही it था clear क्या? now? या इट्स Is it क्लियर। clear now? या इट्स क्लियर नाउ। सो इंट्रो। Okay, okay, okay. सो इंट्रो में यू स्टार्टेड विद मार्शल मैक्लुहान, राइट? Right, right. ओके। So I tried to include his view that the culture is just that there are a lot of culture. We are because of the communication technology, we are just interconnected. But at the same time, the number of culture is just shrinking. But we are also, I mean, advancing. I mean, we are expanding our interconnectedness. So his views belongs to 1960s. ओके। So then after that, the technology is making difference. Yeah, that why I put some general point. ओके। Then ओके। I just got हरी, no need to discuss the full answer. We'll go step by step, right? So okay, I okay, would just like to invite some comments, like what can hmm, be an alternative in introduction. okay. So who was responsible for the question? यार आई थिंक इस क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन तो वही होना चाहिए, Hmm. क्योंकि ग्लोबल विलेज वाला जो कंसेप्ट है ना, Hmm. दैट इज गिवन बाय, उसी ने बताया है, तो वी हैव टू यूज दैट ओनली। मतलब Okay. कर सकते हैं अपन अलग, थॉमस फ्रिडमैन वगैरह, Hmm. बट आई थिंक दिस इज मच मोर अप्रोप्रिएट। Okay. मेरे ख्याल से भी और तो वो कुछ नहीं करना चाहिए काफी मतलब। एप्ट है वो, क्योंकि लाइक आप फर्स्ट सेंटेंस में ही समित आइडेंटिफाई कर बोलो। ले रहे हो तो। हाँ मैं वही कह रहा था कि वो इंट्रोडक्शन सही है, क्योंकि लाइक फर्स्ट सेंटेंस में ही आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ग्लोबल विलेज का आइडिया किसका था, एंड देन यू गो अहेड विद आंसर। Hmm. तो मेरे ख्याल से वो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर बॉडी पे मूव करें।
हाँ, sure. Okay, so body में क्या क्या points आ सकते हैं? Hari, Okay, just mention the points, okay? No need to read the answer. okay. The first one is economy, because Okay. the global village is more related to economy. So Okay. more, I just would try to include the WTO terms, that means good service and a natural person. Hmm. So and try to include Thomas Friedman globalization. Okay. Then people to people contact. So that is emergence and consent. So there's one more thing. There's a global village. There's a book by Srinivas. He's a, I think I mentioned somewhere. I think factors. Okay. I'll leave it. And these are the factors contributed. The strengthening of neoliberalization and Cold War. We know the Western value get promoted and accepted because of the by promotion of the because of the economic institution. That was one of the reason. Then I got a say Trevor Shelley. She's essay liberalization and globalization. So according to her, this phenomena led to social scientists to think world through global values and easing global opinion. I think it's a unique point I get from her. Yes. And secondly, the spreading of technology. We know technology become affordable, especially in case of India, the introduction of 4G. So that kind of thing. Actually, I don't mention that, but I just try to put some general words. Then Ramesh Srinivas. Okay, his book, those global village. He said the social media is a method of freedom. Actually, he tried to explain that the social media in developing countries have a great role in promoting their values and democracy. But I tried to pick that only particular one, the methods of freedom. Okay. And the thirdly, the easiness of global trading, better facilitation. That's a general point. And there was then I go to the current phenomena like the protectionism, trade war, content localization, virtual data wall. The virtual data wall, I think, because of the data localization and the proxy, data firewalls. So I try to mention that one. Then I go to Amartya Sen's because in his paper how judge globalization. So that means the benefit of the globalization. It's not shared fairly. We know that the laissez-faire theory, according to Western value, that the if the free trade culture if promoted, it get diminished. The elevate the poverty, but exactly that does not happen. Mm-hmm. Then I try to then I go to conclusion. There's a general point: eradication of several social evils, and And then you concluded with Bhagwati. Okay. yeah, Bhagwati. So anyone Yes, I think else who, yeah. So anyone else who has written on the same question, or the one who reviewed it, or the one who is responsible for it, would like to add some points into the body and I think conclusion part. Nilesh and Gayatri can say something. मैंने उसमें ग्रुप में अभी कुछ लिखा था एक्चुअली मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया तो मुझे इंटरप्ट नहीं करना था इनको हरे सर को तो बेसिकली एज वी हैव सीन कि व्हेन वी टॉक अबाउट ग्लोबल विलेज तो हम बेसिकली लिबरल्स को मतलब वो करते हैं पॉइंट आउट करते हैं लिबरल्स ने स्टार्ट किया था तो बेसिकली मैंने ये उसमें पढ़ा था जॉन डेनिस स्मिथ में तो उसमें पढ़ना था मैं तो जो लिबरल्स का पॉइंट ऑफ व्यू था दे वर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन दिस डेमोक्रेटिक पीस थीसिस जो इन्होंने कहा था कि इफ देयर आर टू लिबरल स्टेट्स they will never go to war with each other. तो मतलब बिगिनिंग में जब हम स्टार्ट कर रहे हैं आई नो मतलब बेस्ट तो ये होगा अगर हम ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट ही डिफाइन करें बट थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड को डालने के लिए हम लिबरल का पॉइंट ऑफ व्यू डाल सकते हैं मेरा वहां पे दिख रहा है कमेंट डाल रखा है मैंने हाँ ये लास्ट में है कमेंट हाँ तो और दूसरी बात ये है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बॉडी पार्ट तो अगेन क्रिटिकल स्कूल जो फ्रैंकफर्ट स्कूल के अंडर आता है मार्क्सिस्ट के उसमें देयर वाज अ स्कॉलर हु गोस बाय द नेम एंड्रयू लिंकेटर यस सो बेसिकली he was criticizing the this Marxist theory मतलब मार्क्सिस्ट का जो व्यू था ग्लोबलाइजेशन का but at the same time उनका एक वो था व्यू पॉइंट था like he was advocating for a like this borderless world हाँ जिसमें भी मॉडर्न ना हो तो उन्होंने जो है यूरोपियन यूनियन का जो कॉन्सेप्ट था उसको इमेंसिपेटरी
और borderless बताया था. So this way एंड्रू लिंकेल्टर कैन बी यूज्ड इन टू वेज. एक तो ग्लोबल विलेज को सपोर्ट करने के लिए, एट द सेम टाइम देयर वाज अ क्वेश्चन, ये किसी का बहुत वॉइस आ रहा है. सचिन, Please, please mute. I think it's Sachin or anyone. ओके म्यूट हो गया शायद. हाँ, Okay. तो बेसिकली हाँ, एंड्रू लिंकेल्टर का जो व्यू था वो मुझे दो तरह से थोड़ा मतलब यूजफुल लगा. एक तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल विलेज, उसमें ग्लोबल विलेज के कॉन्सेप्ट को वो करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, बिकॉज कि एज ही एडवोकेट्स ये बॉर्डरलेस जो वर्ल्ड होगा, दिस इज द ट्रू फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन. वैसे जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो आपने बोलते हैं स्टेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एक्टर. चाहे भले ही अभी, चलो इस पे बाद में आते हैं. और दूसरा ये था एंड्रू लिंकेल्टर वाला जो पॉइंट था, वो मार्क्सिस्ट स्कूल के अंडर क्रिटिकल स्कूल का था, बट ही वाज क्रिटिसाइजिंग द मार्क्सिस्ट स्कूल एज वेल. बट यहाँ पे हम ग्लोबल विलेज के कॉन्सेप्ट में यूज कर सकते हैं उसको. हाँ, मतलब एंड में वापस उसी बात को रिट्रेट कर दें कि ग्लोबल विलेज विल लीड टू ट्रू फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी और पार्टिसिपेशन, समथिंग लाइक दैट. ट्रू फॉर्म ग्लोबलाइजेशन. ओके, ट्रू फॉर्म ग्लोबलाइजेशन का मतलब, ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन का मेन मतलब तो यही है ना, इंटरकनेक्टेडनेस. तो जब बॉर्डर ही नहीं होंगे, कुछ कोई बॉर्डर ही नहीं होगा, तो उसके बाद मतलब जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी को मतलब ऐसे इंटरनल कोऑपरेशन की. तो ट्रू फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन का ये उन्होंने मतलब अपना वो डाला था, पॉइंट ऑफ व्यू डाला था. ठीक है. सो एंड्रू लिंकेल्टर आई थिंक वुड बी अ बेस्ट स्कॉलर जो हम यहाँ पे ग्लोबल विलेज को सपोर्ट करने के लिए डाल सकते हैं. कंक्लूजन में. हाँ हाँ, मतलब मेरे हिसाब से बेस्ट कंक्लूजन में रहेगा. Okay. बाकी बॉडी पार्ट में तो आई थिंक सेकंड वाला आंसर है. उसमें कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं. आई डोंट रिमेम्बर किसने लिखा था वो, अभी डिस्कस होगा तो देख लेना एक बार. ठीक है. इस पे काफी सारे लोगों ने आंसर्स लिखे हैं. ठीक है, और काफी रिव्यू भी करा है इसको. शिवानी ने करा है, वरुण ने किया है. तो जिसने भी लिखा है उसको अगर कोई और पॉइंट ऐड करना है तो प्लीज बता दो यार. हम थोड़ा टाइम बाउंड मैनर में कर रहे हैं इस बार. Well, because actually Shivani said the point that if we can include, after the conclusion, the Vasudeva Kudumbakam concept, because it's the same in the global village concept. Yeah, it's in line with it, in my opinion. Global village, Vasudev Kutumbakam. Yeah, right. सही है. मतलब कहीं ना कहीं डालना ही चाहिए. Like I like to add one more thing. One of the critical component of a village is that when a person is in need, other person comes to help. And if the idea of global village was mainly this, that we do not have only economic integration, but also a country is coming to help to another and helping the countries which are historically backward to come forward. अभी जो हो रहा है ना कोविड-19 पैंडेमिक में, सो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल विलेज इज कंप्लीटली इनटू क्वेश्चन. तो थोड़ा सा जब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बाद नेगेटिव में लिखते हैं कि हाउ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल विलेज हैज बीन क्वेश्चन, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अच्छा रहेगा, बिकॉज देन वी आर गिविंग अ कॉन्टेम्परेरी व्यू. ओके. मैं क्या सोचता हूँ कि आइडिया तो अच्छा है, लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली ये मेंशन नहीं किया कि कहीं आप उसके नेगेटिव शो करो, और क्वेश्चन के इटसेल्फ 3 पार्ट है, तो मुझे लगता नहीं है हमारे पास इतना स्पेस और टाइम बचेगा कि हम पॉइंट और मतलब थोड़ा क्रिटिकल ऐड कर सकते हैं. लाइक अगर क्रिटिकल ऐड नहीं करें तो ये क्वेश्चन है ना कि फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू इस ग्रोथ, तो इसमें लिख सकते हैं ना कि जो हमारे फैक्टर्स है, तो एक तो है कि वी आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर. एक दूसरा है कि इकोनॉमिक क्वेश्चन है कि ईच कंट्री बेनिफिट्स बिकॉज ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन वगैरह. तीसरा है कि मे बी पॉलिटिकल है, क्योंकि डेमोक्रेसी एक आइडिया है जिसके कारण पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज काफी हद तक बन चुका है. और उसमें भी तो हम लिख सकते हैं ना कि अभी जो कोविड-19 पैंडेमिक है, तो जैसे वैक्सीन है, तो उसके लिए एक कंट्री दूसरे पे डिपेंडेंट है. तो जब तक ये डिपेंडेंस जो है, क्रिटिकल डिपेंडेंस, वो ग्लोबल विलेज में हेल्प करता है. ये भी तो लिख सकते हैं, नेगेटिव नहीं लिख सकते. वैक्सीन डिप्लोमेसी है इसका टर्म, वैक्सीन डिप्लोमेसी. नहीं, वैक्सीन डिप्लोमेसी में वी कैन इवन ऐड वन मोर पॉइंट. जैसे एक वो है कि इनोवेशन और दूसरा पॉलिटिकल लीडरशिप. तो इनोवेशन होगा तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एडवांस होगा, एट द सेम टाइम पॉलिटिकल लीडरशिप होगा, तो उसके बेसिस पे जो है कंट्रीज कैन कोऑपरेट. लेकिन एट द सेम टाइम अगर दोनों नहीं होंगे या फिर एक नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर इनोवेशन है बट पॉलिटिकल लीडरशिप अंडर डोनाल्ड ट्रम्प, तो वहां पे जैसे ही वाज पुलिंग आउट ऑफ नाफ्टा ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, तो उसको हम मतलब रिलेट कर सकते हैं इसमें ग्लोबल विलेज में, अगर नेगेटिव शो करना होगा तो. ओके. पॉलिटिकल लीडरशिप और इनोवेशन. इसी लाइंस पे एक आज में लास्ट क्वेश्चन है कि ओके बोलो. Okay, I was saying कि characteristic और factors, how will you differentiate between them? क्योंकि जो characteristic है वही तो मतलब different form of कैरेक्टरिस्टिक्स में वो सारे आ जाएंगे, इन्वायरमेंटल, पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल,
ये सारे आएंगे। लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फैक्टर्स, तो उसके मतलब बेसिकली Okay. वो किस रीजन से मतलब बढ़ रहा है आगे, किस रीजन से उसका जो है बिल्डअप हो रहा है। सो फैक्टर्स आर बेसिकली अबाउट द बिल्डअप ऑफ द होल स्ट्रक्चर, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर कि बिल्डअप होने के बाद व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होल स्ट्रक्चर। तो वो अलग अलग होंगे मेरे ऐसे में। हाँ मतलब And Okay. because there one more thing. Why the global village? That's the question. Okay, because no country is मेरे self-sufficient. को ये नीलेश का आइडिया सही लगा, जैसे ये कह रहे हैं सोशल पॉलिटिकल ये सब हम पहले लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में, ये जैसे बेसिकली मैंने हांगकांग। इग्नू से ये बेसिकली मैंने इग्नू के नोट से जॉट डाउन किया था। इफ यू वांट मैं इसको अलग से कॉपी करके मैं डाल सकता हूँ ग्रुप में अभी, आज जब खत्म होगा उसके बाद। डाल दो। इसमें नेगेटिव नहीं लिखना चाहिए मेरे हिसाब से, इसमें जैसे इसमें नीलेश ने बोला वैसे है कि हमें कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के उसके बाद हमें उसकी रेलेवेंसी मतलब प्रूव करनी चाहिए, और इतना तो टाइम रहेगा भी नहीं कि। ये 15 मार्क्स का आंसर है। आई डोंट थिंक कि इतना इसको स्ट्रेस करना चाहिए। समझे ग्लोबल विलेज क्या है, अगर हो रहा है तो एक बार को उसका बैकग्राउंड दे दो जो लिबरल स्कूल ऑफ थॉट का है। अगर एक बार को देना है, मैंने ग्रुप में लिखा हुआ है, इन केस अगर देना हो तो उसका सिंबल बॉडी का जो पार्ट है जो लिखा हुआ है हरीश सर ने, और दूसरे वाले जो आंसर में लिखा हुआ है वो वाला भी अच्छा है, एक बार उसको रीड आउट कर देना। और फाइनली फिर कंक्लूड कर दो एंडुलेटर या आपको जो भी अच्छा लग रहा है कैरेक्टरिस्टिक आपको चीज डालने के बाद। यार वो लिंक लेटर में एक बार प्लीज रिवाइज करवा देना, क्या था? लिंक का पॉइंट ये था कि बेसिकली जो वर्ल्ड है वो बोलते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो वो है क्या बोलते हैं जो टॉप के मतलब एक सॉरी सचिन, ओलिगार्की। नहीं सचिन सचिन वो बहुत वॉइस आ रहा है सचिन का। अरे मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ आईपी करेंगे ना अपन, उसमें आता है उसका पॉइंट, शिवरा मैम के अभी कर नोट्स में लेंगे, भी अभी है। अभी थोड़ी देर में कर लेंगे, अभी कर लेंगे। कोई इशू नहीं है। यार देखो ऑलरेडी 16 मिनट्स हो चुके हैं एक क्वेश्चन पे, इस स्पीड से चलेंगे ना फिर वही 2-2.5 घंटे बिगड़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं इसको, आगे बढ़ते मतलब हैं इसको। फटाफट किसी को अगर कोई यूनिक पॉइंटर अगर इसमें ऐड करना है तो वो बता सकता है। काफी लोगों ने लिखा है ना इस पे, पलाश, साक्षी, गायत्री। अगर कोई आपका कोई यूनिक पॉइंट है वो फटाफट ऐड कर सकते हो आप। फिर चलते हैं सेकंड। Okay, one more thing. The इसमें यार concept. एक इसमें जोसेफ स्टिग्लिट्स ने बोला था कि क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ऑपरेशन करेगी ना ग्लोबलाइजेशन में, अपना मतलब पार्ट देगी, तो ईस्ट एशियन कंट्रीज के लिए बोला था कि बहुत हमें बेनिफिशियल रहेगा। तो ये किसी को मतलब लिख सकते हैं ये। ओके चलो ठीक है, देखते हैं। और किसी को कुछ ऐड करना है? Because there's one more point, I think. Because why global village? That means no country is self-sufficient. राइट। So we can add that point. I think it's good. ओके, आई थिंक वी कैन जस्ट राइट वन लाइन ओके ऑन ओके इट। सॉरी, लास्ट पॉइंट, नो कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं बोलना चाहिए, इंटरडिपेंडेंट ज्यादा अच्छा वर्ड होगा आई गेस यहाँ पे इसके लिटरेचर के हिसाब से। ठीक है, इंटरडिपेंडेंट ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं फिर, है ना। ट्रेस द एवोल्यूशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो गौरव शर्मा ने लिखा है, साक्षी ने रिव्यू किया है, और संजय राठौड़ ने लिखा है। तो कौन बताएगा? इंट्रो में क्या डालें? चलो बिना आंसर देके ऐसे ही बता दो, इंट्रो में क्या ऐड करें? ग्लोबलाइजेशन की सीधे डेफिनेशन से शुरू कर सकते हैं मेरे ख्याल से। हाँ आई थिंक उसके डेफिनेशन से ही शुरू करना ठीक रहेगा इसमें। थॉमस फ्राइडमैन से शुरू कर दें क्या? उसकी सही सही डेफिनेशन है। थॉमस फ्रिडमैन का वो क्या बोला था ना, डेफिनेशन था यार, मेरे को याद इनएक्सोरेबल इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, फास्टर, हाँ हाँ चीपर, हाँ फार्दर, वो वाला जो लाइन थी उसकी। करेक्ट करेक्ट हाँ। कोई और मतलब ऑल्टरनेटिव मैंने स्टार्टिंग? मतलब मैंने हाँ आई थिंक रॉबर्टसन का करके मैंने लिखा था उस चीज के अंदर कि रॉबर्टसन का डेफिनेशन था ना, उससे मैंने मतलब पहले मैंने लिख दिया कि एक कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है इसका, तो वहाँ मैंने जैसे एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड डिफाइन किया ग्लोबलाइजेशन को, और रॉबर्टसन ने फिर इसका एक डेफिनेशन दिया है कि इट्स अ कंसेप्ट दैट रिफर्स टू कंपैरिजन ऑफ वर्ल्ड इंटेंसिफिकेशन ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ द वर्ल्ड एज अ होल। ठीक है, ये तो एंथनी गिडन से ना, ये तो हाँ I think if we give definition of Friedman, that will not be appropriate क्योंकि वो specific neoliberal globalization के context में है। ठीक है, तो आपके बेहतर मैंने डेफिनेशन सजेस्ट करो।
सचिन कोई है Maybe we डेफिनेशन can आपका? start with Anthony Giddens' definition. वो comprehensive behavior, famous हाँ मतलब उसमें behavior. स्पेस और टाइम बोला है, तो टाइम के साथ मतलब इसको एवोल्यूशन दिखाना है तो अपने टाइम के साथ Yeah. उसको रिलेट कर सकते हैं, और इसको ग्लोबल विलेज भी मैक्लुहान वाला भी डाल सकते हैं। तो फिर तो अगर टाइम एंड स्पेस दिखा रहे हैं तो मेरे ख्याल से गिडेंस वाला ही ठीक है। ठीक है। गिडेंस का ये रॉबर्टसन में बस यही है, इसमें सेकंड पार्ट जो है ना, जैसे कंप्रेशन ऑफ वर्ड गिडेंस और इंटेंसिफिकेशन वो टाइम वाला बोला, तो रॉबर्टसन ने बस इतना ही बोला, इंटेंसिफिकेशन ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ द वर्ल्ड एज अ होल। तो उसकी डेफिनेशन में थोड़ा सा ट्विस्ट करा हुआ है उसने, तो मतलब दोनों में से कोई भी यूज कर लो। ठीक है, ठीक है। पलाश भी कोई एक ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन बता रहा था। पलाश यार बोल के बता दे, ज्यादा सही होगा यार, कमेंट बॉक्स में क्या यार कोई देखता नहीं है। मैं बोल रहा था बस ग्लोबलाइजेशन को कंटिन्यूस प्रोसेस की तरह रिलेट करके बोल रहा था मैं, कि दूसरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से बोल सकते हैं कि हर एक दूसरे टाइम में वो अलग अलग पर्सपेक्टिव उसको अलग अलग तरीके से डिफाइन कर रहा था। पर्सपेक्टिव भी एक तरह का, आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। मतलब पूरा सेंटेंस आया क्या? हाँ पूरा आया। हाँ आ रही पलाश। हाँ तो वैसे ही मतलब स्कॉलर्स तो ठीक है, पर्सपेक्टिव भी आप एक तरह का अथॉरिटी की तरह उसको सोर्स की तरह मतलब कोट कर सकते हैं, वो भी एक हो सकता है। कोई स्कॉलर रिलेटेड आ रहा है, मतलब दिमाग में आ रहा है कैसे रिलेटेड, ताकि थोड़ी अथॉरिटी दिखे? वैसा तो नहीं आ रहा। अच्छा चलो ठीक है, इंट्रोडक्शन ठीक है। अब बॉडी पे चले। तो बॉडी पे बताओ, गौरव ने लिखा है जैसे, तो गौरव क्या लिखा है बॉडी में, क्या पॉइंटर्स हैं? बॉडी में ये 3 वेव्स होती है ना ग्लोबलाइजेशन की। फर्स्ट वेव अपना सिल्क रूट ट्रेड से, उसमें लिखा है। सेकंड वेव रोमन एम्पायर के साथ है, ये वो लिखा है। और थर्ड वेव वही फिर एंड ऑफ कोल्ड वॉर के बाद से आता है, न्यू लिबरल ग्लोबल ऑर्डर। उसको थोड़ा सा डिफाइन किया है न्यू। यार एक सेकंड बस, थोड़ा ये वेव्स लिखने से पहले, हेलो आवाज आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। हाँ मैं कह रहा था वेव्स लिखने से पहले वुड इट नॉट बी बेटर टू गिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मार्क्सिस्ट एंड लिबरल? मतलब लिबरल से कि ग्लोबलाइजेशन तो 1945 1960 के बाद ही आया है, मार्क्सिस्ट से कि भाई वो 1400 से चल रहा है वेव्स वाला जो है। आई थिंक वी शुड इंट्रोड्यूस दैट थिंग फर्स्ट। जैसे लिबरल्स ने बोला था कि 60s में आया, मतलब मेरे दिमाग में, मतलब मेरे को नॉलेज नहीं है इस चीज़ की। हाँ मतलब लिबरल्स यूरोपियन जो एक्सपांशन वगैरह है, मतलब जो लिबरल्स है ना वो यूरोपियन एक्सपांशन को ग्लोबलाइजेशन थोड़ी मानते हैं। ओके, वो तो मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन है ना वो। तो वंस वी डिफाइन ग्लोबलाइजेशन वी वुड से कि लिबरल्स एंड मार्क्सिस्ट सी इट इन विद डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, बोलो गौरव आगे। हाँ तो उसमें फिर मतलब वही डिफाइन किया उसको कि जो वेव 3 है ग्लोबलाइजेशन वाली, उसमें क्या होता है कि उसको एंड ऑफ हिस्ट्री, मतलब उसको फुकुयामा बोलते हैं। फिर उसमें मार्क्सिस्ट को क्या बोलते हैं कि न्यू बज़वर्ड फॉर कैपिटलिज्म, उसको थोड़ा सा लिखा है। फिर उसके बाद फिर डी ग्लोबलाइजेशन या फिर एंटी ग्लोबलाइजेशन वाला पार्ट भी डाल दिया इन फॉर्म ऑफ आफ्टर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और फिर कोविड-19 का क्राइसिस के बाद। तो फिर मैंने जो कंक्लूड किया है वो एज अ विजनरी मतलब एस्पेक्ट से किया है कि इसको ग्लोबलाइजेशन 4.0 कैसा होना चाहिए, जो आईआर से मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 से रिलेट होते हुए, और वो मतलब ऐसा होना चाहिए कि जितने भी प्रॉब्लम्स अब तक पिछले 3 ग्लोबलाइजेशंस में आई हैं उनको प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करते हुए एक रिफॉर्म्ड वे में होना चाहिए, मुझे ऐसा लगा। अच्छा तो बेसिकली जितना समझ आ रहा है, आपने पहले 3 वेव्स बताई, ठीक है, फिर आपने थोड़ा डी ग्लोबलाइजेशन बताया करंट कॉन्टेक्स्ट में, और आपने जो कंक्लूजन में थोड़ा विजनरी दे दिया कि 4.0 चाहिए हमें, क्योंकि 3 तो आ गए। हाँ ठीक है, इसके अलावा लेकिन इसमें सोनाली बोल रही थी कि भाई ऐसे नहीं कर सकते कुछ, मतलब कोई बोलेगा तभी कर सकते हैं ऐसा। और इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करना भूल गया, जो मैं ऐड कर सकता हूँ अपनी तरफ से, कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वो अपना वसुदेव कुटुंबकम ये वैल्यूज भी डाल सकते हैं इसके एवोल्यूशन में। एवोल्यूशन में कैसे डालेंगे? मतलब कि हमारा एंशिएंट टाइम से रहा है, तो मतलब ये भी एक ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करता है ना एक तरीके से, इसका इवोल्यूशन बोल सकते हैं ऐसा करके। मुझे लगा ऐसा, मैंने लिखा नहीं है लेकिन लिख सकते थे ऐसा, राइट? नहीं मेरे ख्याल से तो जो क्वेश्चन है ना, ट्रेस द एवोल्यूशन, तो मेरे ख्याल से उसकी जर्नी कवर करते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा जैसे तुमने किया है। एंडिंग में आई थिंक जोसेफ स्टिग्लिट्स वाला आइडिया डाल देते हैं कि क्या करने से ग्लोबलाइजेशन और बेटर रहेगा। तो आई थिंक
प्रोबेबली व्यू भी हो जाएगा और वो प्रोग्रेसिव भी हो जाएगा थोड़ा। Okay. आई वाज सेइंग दिस, सोनाली भाई शिवानी, तो मैंने उस टर्म्स में बोला था कि जैसे इनका भी मेरे को ठीक लगा, पहले मेरे को समझ नहीं आया था, अब मेरे को थोड़ा क्लियर हो गया। मैं बोल रही थी कि जैसे एवोल्यूशन हुई है, हमको फ्यूचर एस्पेक्ट पता नहीं है कि कैसे जाएगा कैसे नहीं, तो हम स्कॉलर को देख लें जिसने बोला कि ग्लोबलाइजेशन का ऐसा फ्यूचर हो सकता है कि अगर बिल्कुल ही निगेट करा है तो उस सेंस में जैसे ये वॉलरस्टीन करता है, या अगर बिल्कुल सपोर्ट में बोला जैसे भगवती करता है, तो मतलब हम अपनी परसेप्शन ना लगा के किसी स्कॉलर की लगा दें कंक्लूजन मेकिंग, है ना, आगे कैसे इवॉल्व हो सकता है। हाँ, इसमें जोसेफ स्टिग्लिट्ज का बेस्ट रहेगा क्योंकि उसका बुक है ना ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट, एंड दूसरा बुक है शायद मेकिंग ग्लोबलाइजेशन वर्क। तो उस पे उसने बहुत इलेबोरेटली इसी चीज से डील किया है, जैसा कि रिफॉर्म होना चाहिए आईएमएफ वगैरह में, और वॉशिंगटन कंसेंसस की जगह जैसे पोस्ट वॉशिंगटन कंसेंसस होना चाहिए, और इक्विटी बेस्ड होना चाहिए। जो ये डेवलपमेंट हो रहा है इक्विटी बेस्ड होना चाहिए। तो ये सब थोड़ा प्रोग्रेसिव व्यू रहता है, और मतलब फ्यूचरिस्टिक भी है, मतलब आने वाले टाइम में ऐसा कुछ इम्प्लीमेंटेशन करे तो इसके जो बेनिफिट है ग्लोबलाइजेशन के वो थोड़ा इक्विटेबल हो, ऐसा करके। ठीक है, तो संजय Sanjay, हाँ Sanjay, there's मैं one more. Okay, हाँ there's this called Nestor Christian. So he said we must create a kind of globalization that works for everyone and not just for a few. So it may be relevant for conclusion too. ओके। हाँ, हरे वाला यार एक चीज नाइस है, जैसे अभी गौरव की भी जो कंक्लूजन है ना, वो भी सही है। मतलब मेरे को वर्ड थोड़ा लगा कि हमको ऐसी नीड है या कुछ ऐसे करके, थोड़ा अगर वर्ड चेंज होता है कि अगर ऐसा हो जाए तो हो सकता है। कोई ओआरएफ पे है पता नहीं, मैंने अपने आंसर में लिखा है समीर के पता नहीं कौन, उसने भी इसी लाइंस पे खत्म करा है कि ऐसी ग्लोबलाइजेशन चलती रहे जो मतलब सस्टेनेबल हो। तो गौरव के आंसर में भी उसने जो सॉल्यूशन दिए हैं वो भी सस्टेनेबल सेंस में ही दिए हैं। तो अगर किसी ने उस सेंस में देखना है तो उसमें भी देख सकता है। अच्छा एक सेकेंड, सिंस दिस क्वेश्चन इज अबाउट इवोल्यूशन, जो वसुदेव कुटुंबकम किसी ने बोला ना, वो स्टार्टिंग में डाल सकता है क्या, मतलब इंट्रोडक्शन के बाद में, हाँ, वैसा लाइन मतलब एंशियंट इंट्रोडक्शन टाइम के से बाद ही, में हाँ सही रहेगा। मतलब वो अगर डालना है मतलब कहीं एंशियंट पे। टाइम से ही ऐसा आइडिया है, ऐसे बोल सकते हैं ना। हम्म। वही हाँ, बोल रहा था। चलो ठीक है, स्टार्टिंग में डाल सकते हैं। यस। मतलब मैंने इसको थोड़ा सा ना, मतलब मेरे को कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा था, एक बार तुम लोग बताना कि मैंने इसको ऐसा लिख दिया। मतलब स्टार्टिंग से एकदम ही हम सीधा अपफ्रंट ग्लोबलाइजेशन की वेव लिखने लग जाएंगे तो थोड़ा ऑड लगेगा। मैंने बीच में बस जैसे वसुदेव कुटुंबकम वाला होना चाहिए था ना, तो वैसे ही मैंने एक पिलर बनाया कि ग्लोबलाइजेशन कैन बी सेड टू द रिजल्ट ऑफ material dialectics which originated in the West and has now gained universal acceptance as in words of Francis Fukuyama, he described it as end of history। और फिर मैंने करके ग्लोबलाइजेशन का चालू किया। ऐसा ठीक रहेगा क्या? मेरे ख्याल से इंट्रो के बाद और वेव शुरू करने से पहले थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, हाँ हाँ, वही वही हाँ कनेक्टिंग हाँ पैराग्राफ। एक कनेक्टिंग पैराग्राफ तो चाहिए। वासुदेव कुटुंबकम वाला आइडिया तो ठीक लग रहा है मुझे। ठीक है। यार मैं, जो आइडिया है वसुदेव कुटुंबकम का, वो इंट्रो में नहीं आ सकता क्या, हिस्टोरिकल कंसेप्ट डाल के, एंड देन विल स्टार्ट ऑफ विद जो अपना डेफिनेशन है या फिर फेजेस है वो सब, क्वेश्चन पे हिस्टोरिकल डायरेक्ट डिपेंड बढ़ सकता है क्या। करेगा कैसे क्वेश्चन पे, इसमें तो वैसे आ ही सकते हैं वैसे तो। वैसे कंक्लूजन व्हाट इज वसुदेव कुटुंबकम आइडिया? इट इज बेसिकली आइडिया वासुदेव क्या। कुटुंबकम, वर्ल्ड हाँ, इज वन फैमिली। बोलो बोलो बोलो। हाँ, तो जैसा कि अक्षय ने हाँ, तो बताया सबसे सिंपल यही बेसिकली है। कॉस्मोपॉलिटन। बोलो सूर्या बोलो। अरे हाँ भाई, तो बेसिकली वसुधैव कुटुंबकम मतलब क्या, कॉस्मोपॉलिटन वर्ल्ड व्यू। तो हम ऐसे बता सकते हैं कंक्लूजन में कि इंडिया हैज ऑलवेज बीन द प्रोपोनेंट ऑफ कॉस्मोपॉलिटन वर्ल्ड व्यू बाय सेइंग वसुधैव कुटुंबकम, एंड इंडिया विल ऑलवेज फॉरवर्ड इस टाइप, मतलब पॉजिटिव। एंड मोरओवर ये जो आंसर में लिखा है ग्लोबलाइजेशन कैन बी सेड टू रिजल्ट ऑफ मटेरियल डायलेक्टिक्स व्हिच ओरिजिनेटेड, तो ओरिजिनेटेड तो फिर वो एंटीथेटिकल हो जाएगा ना वसुदेव कुटुंबकम से। वेस्ट में थोड़ी ना ओरिजिनेट हुआ है, मतलब सुमेरियन सिविलाइजेशन भी थी और चाइनीज सिविलाइजेशन भी थी, अपनी भी थी, तो है ना, हाँ ये वही थोड़ा बोल रहा देख था, लेना। ओरिजिनेशन थोड़ा वैसे वो थोड़ा फैक्चुअल गलत हो। कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। चलो ठीक है ना। मेरे ख्याल से तो वासुदेव कुटुंबकम कंक्लूजन में भी ठीक रहेगा कि इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ सपोर्टर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कंक्लूजन में बेस्ट है आई गेस। स्टार्टिंग में फिर भी थोड़ा ऐसा नहीं कि हम असर्ट ही कर रहे हैं कि अपन अपन ही है ग्लोबलाइजेशन के।
है ना, यार मतलब एंडिंग में फिर भी ठीक। मेरे हिसाब से कंक्लूजन में स्टिग्लिट्स वाला बेस्ट है, या फिर अमर्त्य सेन का डाल दो। मतलब जो करंट ग्लोबलाइजेशन उसको वर्क कैसे करवाना है वो ज्यादा बेटर लग रहा है। करेक्ट देखो करेक्ट। आई थिंक यार, देखो ऑप्शंस दे देते हैं, ठीक है, किसी को ठीक वासुदेव है, वाला ज्यादा अच्छा लग रहा होगा, वो उससे कंक्लूड कर लो। ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही आंसर हो सकता है। वासुदेव से क्या बोलेंगे, मतलब कैसे कंक्लूड करेंगे? मतलब वही कि इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ सपोर्टर ऑफ द आइडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ वसुदेव कुटुंबकम, एंड द वर्ल्ड नीड्स समथिंग लाइक, जो उसने बोला, गौरव ने बोला था ना, कि अ न्यू फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन, दोनों को इंटीग्रेट करके लिख दो। We can add Pratap Bhanu Mehta, like Indian scholar, for that हाँ, प्रताप भानु मेहता to ने भी इस पे अच्छा justify it. बोला। क्या बोला था प्रताप भानु मेहता ने, सीधा ही बोल दो। मुझे तो Like क्रिटिसिज्म में याद आता है। he gave positive and the negative thing. Like नो, if you use व्हाट it कैन for बी अ positive, फ्यूचरिस्टिक positive. और कंक्लूजन दूसरा बोलेगा यूटिलाइजिंग पीबीएम। at best, वही देखो प्रताप भानु में तो क्या बोल रहा है कि एट बेस्ट इट कैन बी सीन एज एन अपॉर्चुनिटी और इमेजिनेटिव अपॉर्चुनिटी, एंड एट वर्स्ट इट कैन बी सीन एज अ, मतलब कैपिटलिस्ट को एक्सपांड करना है, बिजनेस पैसा कमाना है, ऐसा कुछ। एग्जैक्टली वर्ड याद नहीं आ रहा मेरे को भी। हाँ, तो हमने पढ़ चार लो पांच क्या? ऑप्शन दे दिया है, जिसको जिससे अच्छा लगे उससे खत्म करो। नहीं मतलब कोई इशू थोड़ी है आइडिया में। ठीक है, ठीक है। बट आई थिंक एक स्टैंडर्ड जो है ना, कि कुछ भी नहीं याद आ रहा तो जोसेफ स्टिग्लिट्स जो है वो लाइफ सेवर है इस क्वेश्चन के अंदर। मतलब ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में जोसेफ स्टिग्लिट्स कैन बी अ स्टैंडर्ड आंसर। अच्छा, मैं प्रताप भानु मेहता को पढ़ लेता हूँ। Globalization at best is an imagination of vast opportunities, and at worst it is an elite looking for new pastures of opportunity. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे अपन को है ना, 7:31 हो गए, अपन 15 मिनट ऑन एन एवरेज दे रहे हैं क्वेश्चन को, थोड़ा सा कम करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन, एग्जामिन द नेचर एंड डायनामिक्स ऑफ कंटेम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन, ये अलॉट तो मुझे हुआ था, लेकिन मुझे इस क्वेश्चन में कुछ समझ नहीं आया, नहीं तो मैं इसका आंसर लिख देता। तो अदिति ने लिखा है, तो अदिति बताओ। सरफेस भी है, फोटोन भी है। फोटोन कौन है यार? फोटोन होता है ना वो जो लाइट में होता है वो। अरे नहीं, अपने में फोटोन कौन है? अजय कोई यहाँ पे यार लाइव फोटोन। अदिति भी नहीं है क्या? हाँ हूँ। बताओ ओके अदिति जी। मैं आंसर ओपन करूँ या ऐसे ही बता दोगे? हाँ खोल दो मुझे। तो स्टार्ट तो मैंने मिल्टन फ्राइडमैन की उससे ही किया था। यार आपके दो आंसर्स हैं यहाँ पे, दोनों सेम ही है क्या? नहीं नहीं, ऊपर वाले में सिर्फ एक ही पेज है, नीचे वाला खोलो। अच्छा, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन तो वही बेसिक मिल्टन फ्राइडमैन का डेफिनेशन से किया था मैंने। आई थिंक ये थॉमस फ्राइडमैन ने बोला था ना, मिल्टन अलग है। ओके, मिल्टन फ्राइडमैन कोल्ड वॉर होता है। हाँ, एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना, मुझे लगता है थॉमस था। मिल्टन फ्रीडमैन तो वो था जिसने बोला था कि मार्केट को फ्रीडम नहीं चाहिए, फ्रीडम के को लिए मार्केट चाहिए, राइट। ओके, करेक्शन कर दूंगी। ठीक है, और क्या इंट्रोडक्शन हो सकता है? मेरे ख्याल से ग्लोबलाइजेशन में तो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है ही अपने पास, मतलब ये थॉमस फ्राइडमैन को यूज कर दो या किसी को यूज कर दो, हर क्वेश्चन में उसको डिस्कस करने की नीड है नहीं। 3-4 थिंकर से किसी को भी यूज कर सकते हो आप, काफी अच्छा डेफिनेशन है। और कुछ भी याद ना आए तो एक सिंपल डेफिनेशन तो है ही, जैसे पलाश बता रहा था, है ना। और बाकी बॉर्डरलेस वर्ल्ड लिख के एक लाइन हो जाएगा। हाँ, तो इंट्रो में मेरे ख्याल से डिस्कस करने का जरूरत नहीं है इतना, बॉडी पे चले। हाँ, For introduction, Thomas Friedman introduction may be better. Yeah, that's what I was saying. Okay. ओके, इसके बाद मैंने ये लिखा कि आफ्टर द फॉल ऑफ बर्लिन वॉल एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, gates of globalization were unlatched by the capitalist institutions, thereby globalization remaining a major consequence. Today, the world is called as global village by see, Aditi, you don't need to read your whole answer. Just present us some key pointers. तो फिर लाइक सेकंड पेज पे आ जाओ, ये सब तो बहुत ही बेसिक लिखा था मैंने। फिर एक मिनट, एक सेकंड, ये आपने जैसे ग्लोबल विलेज लिखा है मैक्लुहान के, है ना? ठीक है। उसके बाद
एग्जाम्पल्स दिए मैंने, लाइक MNCs, एप्पल और अमेजोन कैसे, और फिर मैंने सिविल, पॉलिटिकल, सोशल राइट्स जो भी है एग्जाम्पल दिया मैंने अरब स्प्रिंग का। फिर FDI और फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिलेटेड भी मैंने इसमें एग्जाम्पल दिया था, जैसे गिफ्ट सिटी। फिर कल्चर का भी एग्जाम्पल दिया, लाइक कल्नरी प्रैक्टिसेस, क्लोथ्स और म्यूजिक, मूवीज वगैरह भी कैसे इन्फ्लुएंस हुआ। तो सिविल सोसाइटी का भी मैंने इसमें थोड़ा सा कॉस्मोपॉलिट कैसे इसने ग्लोबल कॉस्मोपॉलिटन कल्चर इन्फ्लुएंस किया है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा क्रिटिसिज्म देखा, मार्क्सिस्ट ने जो इसको कहा है कि इट इज जस्ट अ बज़वर्ड। फिर दूसरा क्रिटिसिज्म था कि हाउ MNCs आर व्यूड एज प्रॉक्सी ऑफ वेल्दी नेशंस, और फिर कैसे ये IMF, वर्ल्ड बैंक, UN वगैरह सीन एज puppets ऑफ कैपिटलिस्ट वर्ल्ड। राइज इससे इसका एक और क्रिटिसिज्म है कि हाउ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इज आल्सो सीन एज ऑफशूट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और कैसे हिंडर करता है ये कल्चर हमारा, लाइक जंक फूड इज मोर प्रेफर्ड ओवर बाजरा, मिलेट्स एटसेट्रा। इसका थोड़ा मैंने ये बताया कि क्या जैसे वैक्सीन नेशनलिज्म है करंट कॉन्टेक्स्ट में, और कैसे ट्रम्प की पॉलिसीज वर अबाउट ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म, और जो कोल्ड वॉर चल रहा था US और चाइना के बीच में, और ब्रेक्सिट हुआ था। तो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन का बैकलैश बताया मैंने थोड़ा सा, US पुलिंग आउट ऑफ मेजर इंटरनेशनल ट्रीटी। और यहाँ पे मैंने रमेश ठाकुर को भी कोट किया था कि हाउ ग्लोबलाइजेशन इज सॉफ्ट अंडरवेलिंग ऑफ कॉर्पोरेट इंपीरियलिज्म। फिर एंडिंग थोड़ी मेरे को समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लिखा था, आत्मनिर्भर भारत by India is also a way to make India self-reliant, blessing COVID-19 to push domestic manufacturers or producer। मतलब ये थोड़ा सा एंडिंग ग्लोबलाइजेशन has made things cheaper, faster, deeper and farther। ठीक है। तो क्वेश्चन मतलब आंसर तो ठीक है। मेरा ये डाउट है कि जो ये क्वेश्चन था ना, एग्जामिन द नेचर एंड डायनामिक्स ऑफ कंटेम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन, तो एक्चुअली ये पूछना क्या चाह रहा है, मतलब नेचर ऑफ कंटेम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन मतलब उसका इम्पैक्ट। मतलब मैंने इस पे थोड़ा सा, मतलब मुझे भी ये क्वेश्चन असाइन हुआ था, तो मैंने इस पे थोड़ा सोचा। तो मैंने तो ये सब सोचा कि जैसे हम नेचर जब बात करेंगे तो हम क्या क्या कह सकते हैं। पहली चीज ये कह सकते हैं कि, और इसमें कुछ कुछ टर्म्स मतलब जैसे इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कंटेम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन लिखा है, मीन्स कि हमें थोड़ा सा नेचर जब हम एनालाइज कर रहे हैं तो उसे कंपेयर करें विद अर्लियर मीनिंग ऑफ, मतलब फॉर्मर मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन से थोड़ा सा। ओके। जैसे कि एक चीज हमें देखने मिलती है कि पहले जो भी ग्लोबलाइजेशन हुआ है उस समय पे जो पीपल टू पीपल मूवमेंट था वो डोमिनेट करता था इन द ग्लोबलाइजेशन। अभी के टाइम पे गुड्स और मनी एंड फर्म्स, ये सब टेक्नोलॉजी, कल्चर, ये सब का मूवमेंट डोमिनेट करता है इन कंटेम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन। एंड दूसरी चीज मैंने ये लिखी कि जो टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन है ग्लोबलाइजेशन, उसमें ये हो रखा है कि जो मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज इनोवेट होती हैं वो इनोवेशन नॉर्थ से बनते हैं, एंड देन उसका जो हार्म है वो सदर्न स्टेट्स है उनमें जाता है। और ग्लोबल सप्लाई चेन की बात करी जा सकती है, मतलब अगर हम नेचर में डिस्कस करना चाहें, हम जो ट्रांसनेशनल एक्टर्स है और उसका जो असर होता है स्टेट सोवरेनिटी पे, आई थिंक वो एक और डिमेंशन है जब हम नेचर को कवर कर रहे हैं तो डिस्कस कर सकते हैं। तो बेसिकली मतलब नेचर को हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स से, कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। मतलब मुझे तो ये लगता है डायनेमिक्स में मैं क्या सोच रहा था कि डायनेमिक्स शुड प्रोबेबली भी कि अभी पिछले 1-1.5-2 साल में या फिर 5 साल 10 साल में, लास्ट डेकेड में क्या फर्क आया है, क्या चीजें चेंज हो रही है लगातार, व्हाट इज ऑन द मूव, मतलब इन ग्लोबलाइजेशन। तो वहां पे आई थिंक कोविड का इम्पैक्ट को डिस्कस किया जा सकता है, एंड जो रिसेंट नेशनलिस्ट टेंडेंसीज आ गई है, नेशनलिज्म की टेंडेंसी आ गई है, थोड़ी सी प्रोटेक्शनिज्म जो आ गई है, मतलब मैं इस तरीके से सोच रहा था इसे। तो और किसी ने क्या इंटरप्रेट किया है? मैंने मतलब अपना बता रहा हूँ, मतलब भरदेश का वैसे सही है बोलना, बट आई थिंक कि यहाँ पे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कंटेम्परेरी ग्लोबलाइजेशन, उसके नेचर और डायनेमिक्स, तो हमें पिछले 1-2 साल का नहीं, पिछले 2 डिकेड का कम से कम कंसिडर, या 1 डिकेड का भी कंसिडर करना चाहिए। एटलीस्ट इस वाली वेव का तो करना चाहिए। एग्जैक्टली, गिवन द फैक्ट कि गिवन द फैक्ट कि, सॉरी भरतेश, एक बार मैं बोल देता हूँ, तुम बताना ठीक है मैं कितना मेरा क्या है। गिवन द फैक्ट कि देयर इज अ राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन कंट्रीज, देयर हैज बीन अ राइज ऑफ द सॉरी हेगेमनी जो उसकी थी यूएस की, वो डिक्लाइन हुई है, ऑल्टरनेट हेगेमन हुआ है वहाँ पे।
एक मतलब हम बेसिकली मेरा मतलब पॉइंट ये ओवरऑल कि रियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू डालना ज्यादा सही रहेगा यहाँ पे, क्योंकि पिछले 10 साल में जो हमने देखा है, जो कंटेम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन में चेंजेस आए हैं, वो रियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आए हैं। इसमें एक थिंकर था जॉन रगी करके, जिसने कॉन्सेप्ट दिया था एम्बेडेड लिबरलिज्म का। उसमें मतलब उन्होंने ये कहा था कि ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए, लेकिन देयर हैज टू बी अ सोशल सिक्योरिटी सिस्टम प्लस एक्टिव लेबर मार्केट पॉलिसीज। उन्होंने इस लिमिट को यहाँ यहाँ लिमिट करा था कि ग्लोबलाइजेशन इस लिमिट तक रहना चाहिए। उसी को आगे स्टेट्स ने अपने नेशनलिज्म को प्रमोट करते हुए, चाहे वो टर्की हो, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे इंडिया हो, हर कोई अपने नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पे आगे बढ़ रहा है। अभी जैसे अगर हम देखते हैं कि हम बोलते हैं, जैसे भरतेश ने कहा, there has been a rise there has been the rise of non-state actors, transnational actors in technology। लेकिन जब कोविड आया तो हमने देखा, अल्टीमेटली हम कहते हैं ना कि ग्लोबलाइजेशन में स्टेट हैज द अल्टीमेट पावर। सो स्टेट ने जिस तरह से सारी वर्ल्ड में जो है स्टेट्स ने लॉकडाउन लगाया, स्ट्रिक्ट पॉलिसीज जो इम्प्लीमेंट करी है, उसके बेसिस पे वी कैन से कि स्टेट का रोल वापस उनके हाथ में आ चुका है। अभी ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या मल्टीनेशनल जो कॉर्पोरेशंस, इनका रोल जो है इतना लिमिटेड रह चुका है कोविड के आने के बाद, अगर हम कोविड को कंसिडर कर रहे हैं तो आई थिंक यहाँ पे रियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू डालना ज्यादा अच्छा रहेगा डायनेमिक्स में। नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये बोलना चाहिए कि वो इंटरचेंजेबल है। मतलब बेसिकली कि एक टाइम पे अगर वो राइज कर रहा था ग्लोबलाइजेशन, लेकिन अभी के टाइम में वो लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू से राइज कर रहा है। अगेन मतलब वही पॉइंट है कि इनिशियली जब ग्लोबलाइजेशन आया था तो इट वाज बेस्ड ऑन द रिगार्डियन लॉजिक ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज कि फ्री ट्रेड होना चाहिए। सो उसके बाद हमने देखा था 1929 में इसके जो ये प्रिंसिपल था, उसके तुरंत बाद 1929 में जो है ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है, और सारे स्टेट जो है, जो हाल अभी स्टेट का अभी इस समय हो रखा है, वही हाल उस समय था जो स्टेट ने रियलिस्ट पॉलिसीज अपनाई थी। तो आई थिंक कि इस क्वेश्चन की इंटरप्रिटेशन में वी शुड लुक फॉर द रियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, और साथ में ग्लोबलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हो रहा है। मेरा इस पे एक मतलब ओपिनियन ही है। मैंने इसको थोड़ा ऐसे इंटरप्रेट किया था, इसमें ऐसा लिख सकते हैं क्या कि जैसे बोल रहा है कि नेचर डिफाइन करो कंटेम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन का, तो कोई एक ब्रॉड कंसेंसस नहीं है स्कॉलर्स के बीच में भी कि ग्लोबलाइजेशन को कैसे डिफाइन करें। तो क्या हम इस पे मतलब जैसे स्कॉलर की कैटेगरी बनी हुई है ना कि रियलिस्ट इसको किस तरीके से देखते हैं, लिबरल्स को इसको किस तरीके से देखते हैं, मार्क्सिस्ट कैसे देखते हैं, वैसे कर सकते हैं क्या? हाँ, मतलब मेरे मैंने तो ऐसे ही करना था। टर्म तो एग्जामिन लिखा है, दे आर नॉट, मतलब दे वांट अस टू क्वेश्चन जो नेचर है उसका, वी हैव टू थिंक अलग अलग तरीकों से भी। तो एग्जामिन के हिसाब से करें तो हाँ, देखा जा सकता है वेरियस पर्सपेक्टिव जो है ग्लोबलाइजेशन के, दे कैन बी एनालाइज्ड। जैसे रियलिस्ट बोलते हैं कि अल्टीमेटली स्टेट इज डोमिनेटिंग, दे आर स्टिल क्रेविंग फॉर पावर। ठीक है, लिबरल्स बोलते हैं कि स्टेट डिक्लाइन हुआ है और जो लिंकेजेस है इंटरनेशनल वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रेंथन हुआ है। मार्क्सिस्ट तो नेगेटिव है ही। और क्या सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, वो तो बोलते हैं कि जो बनाए वो मतलब जो चाहे वो बना लो, इट डिपेंड्स ऑन हाउ स्टेट सीज समथिंग लाइक दैट। ये तो ट्रांसनेशनल एक्टर्स पे जो बेसिकली ओपिनियन है ऑफ रियलिस्ट एंड बाकी सबका, आई थिंक फेमिनिस्ट का ओपिनियन हो गया, क्रिटिकल थ्योरी का ओपिनियन हो गया कि जो भी वर्किंग क्लास है दे आर एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, तो अल्टीमेटली वो सिस्टम के ही पार्ट बन गए हैं। और इसी को मतलब इतना ही काफी है, स्कॉलर्स भी डालते हैं इसमें काफी। और डायनामिक्स में, डायनामिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, डायनामिक्स में वो सारे डाल सकते हैं कि वही सारे की जैसे वो 2008 के क्राइसिस के बाद जो राइज डिक्लाइन हुआ था, फिर दोबारा जब राइज हुआ, और अभी दोबारा जब डिक्लाइनिंग फेज में है ट्रम्प की पॉलिसीज के बाद। हाँ, आई थिंक वो जो फरीद ज़कारिया का जो वर्क है ना, ये वाला द 10 लेसन्स फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड, उसमें ही सेज दैट ग्लोबलाइजेशन इज नॉट डेड एंड द वर्ल्ड वुड नीड मल्टीलैटरलिज्म मोर देन एवर फॉर पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी। Nations are just wanting to diversify their sources instead of relying on a single nation. मतलब for globalization वो argue कर रहा था in favor। वैसे ही सी राजमोहन ने कहा कि क्या कहते हैं, we might be past the peak of expensive globalization and hyper connectivity and that sovereignty is back and solidarity is under stress। ऐसा कुछ क्या रखा मतलब सी राजमोहन ने। चलो मेरे ख्याल से फरीद ज़कारिया वाला ज्यादा एप्ट है इन क्वेश्चंस में। सी राजमोहन थोड़ा ज्यादा कंटेम्प्रेरी हो गया मेरे नजर में। तुम सारे सारे अगर हो पाए तो उसमें आंसर के नीचे एक बार डाल देना ये सारे पॉइंट्स। क्या नाम था फरीद ज़कारिया का? आगे 10 फरीद ज़कारिया वाला इनपुट, और इसका भी सीराज मैंने कुछ बना रखे थे इसके, और भी एग्जांपल्स दे रखे थे, जैसे कोविड-19 से रीइंफोर्समेंट कैसे हुआ है ग्लोबलाइजेशन का डिजिटल स्पेस में। जैसे चाइना ने CBDC लाया है, इंडिया ने डिजिटल लर्निंग, डिजिटल कम्युनिकेशन इनिशिएटिव्स लाए हैं, स्टेट बिजनेस एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अभी डिजिटल इकोनॉमी पे स्ट्रेस करने लगे हैं।
और भी कई चीजें। फ्रांस जो दूसरा साइड है उसमें ग्लोबल सप्लाई चेन के डिसरप्शन से जो फ्रांस और बाकी कंट्रीज हैं वो अपने में थोड़ा सा वापस प्रोटेक्शनिज्म पे आ रही हैं। ये सब लिख रखा है। आई शेयर ये जो भी मैंने इसका स्ट्रक्चर बना रखा था। चलो ठीक है, इसको भी हमने लगभग 15 मिनट ही ले लिए। कंक्लूजन किसी के पास हो माइंड में? यस सर। Because one more point, okay, for defending globalization, we can put coffee and then code. That it has been said that arguing against globalization is just is like arguing against the law of gravity. It can be used for supporting the globalization. Yeah, defending globalization because. Okay. ओके अच्छा, एक चीज किसी ने नहीं बोली यार, चाइना लेड ग्लोबलाइजेशन। अगर जैसे इन्वायरमेंट वाली बात करें, पेरिस क्लाइमेट टॉक, उस पर बात नहीं हो पा रही है क्योंकि कोई ग्लोबल कंसेंसस नहीं बन पा रही है। वो भी हम भी कंटेम्परेरी डायनेमिक्स में डाल सकते हैं। Climate can be used for globalization in every answer, like. नहीं क्लाइमेट वाला अगर ये सारे पॉइंट आते हैं अगेन रियलिस्ट वाली भी आ जाएंगे ना। स्टेट अगर Like it is only the one aspect, one institution that like terrorism is one, and this terrorism which protects security, and this is also is one more thing. Like every state will come together irrespective of the like trade tensions and like border tensions and everything. Like we and China, Pakistan, like everyone come together. We can add like in every answer like climate and terrorism. एक उसका क्या बोलते हैं, शी जिनपिंग का भी कोट था ना उस पे WEF समिट पे था, that we shouldn't retreat to the harbors as soon as we encounter the storm, something like that, ऐसा कुछ था ना। तो ये डाल सकते हैं ना कि भाई क्योंकि अभी ग्लोबलाइजेशन क्राइसिस में है, तो आई थिंक वी शुड बी फोकसिंग मोर ऑन बिल्डिंग बैक बेटर इंस्टेड ऑफ टॉकिंग ऑफ डीग्लोबलाइजेशन। चाइना इज रेडी फॉर टेकिंग द बर्डन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। एक ट्रेंड और देखने को मिल रही है। ये पहले डेवलप कंट्री सपोर्ट करते थे ग्लोबलाइजेशन को, लेकिन अब चाइना और इंडिया जैसे कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज भी सपोर्ट कर रहे हैं, और उनका जो है जो डेवलप कंट्री है उसका कहीं कि एंटी ग्लोबलाइजेशन की तरफ मूव है। ठीक है, करेक्ट। हाँ चलें फिर नेक्स्ट पे, और किसी को कुछ ऐड करना? ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। मैंने अपना एक वो डाल दिया है इमेज, अगर तुम लोग चाहोगे तो रेफर करना, उसमें कई कमेंट्स लिखे हैं इससे रिलेटेड। ठीक है। Thank you, Bhartesh. Fourth question: critically examine the globalization in past 25 years from the perspective of Western world. ठीक है, तो इस पे लिखा है नेपोलियन सोलो ने और शिवानी ने। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन तो मेरे ख्याल से ग्लोबलाइजेशन तो है ही, क्या इंट्रोडक्शन कोई वो है नहीं। मैंने रॉबर्टसन की डेफिनेशन से स्टार्ट करा। ठीक है, बॉडी पार्ट पे चलते हैं। रॉबर्टसन स्ट्रक्चर बोल दो जिसने भी लिखा है, कैसे लिखा है। बॉडी पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन रॉबर्टसन की, फिर मैंने जैसे वो बोल रहे हैं कि पास्ट 25 इयर्स का बताना है कि कैसे वेस्टर्न वर्ल्ड का चल रहा है, तो मैंने थोड़ी सी बैकग्राउंड दे दी कि ग्लोबलाइजेशन कोई नई प्रोसेस नहीं है, ये हिस्ट्री से चलती आ रही है। और जोसेफ स्टिग्लेट ने कहीं पे बोला है कि कोई फोरम पे बोला है, ग्लोबलाइजेशन 2020 इज डिफरेंट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन 2000। तो मतलब थोड़ा स्टार्टिंग में कि ट्रांजिशन आएगा, जैसे उन्होंने 25 साल का ट्रांजिशन पूछा है। फिर बैकग्राउंड में बता दिया कि जब स्टेज सेट हो रहा है 25 साल पहले वगैरह का, यूएसएसआर का वो फॉल फुल, फिर उसके बाद कैपिटलिज्म का इनका रास्ता साफ हो गया, अब इनको ऑपोजिशन में कोई नहीं है। तो अब स्टेज सेट हो गया, इन्होंने अपनी प्रोपेगेंडा, मतलब नहीं ऐसे वर्ड नहीं यूज करे मैंने, बेसिकली IMF और वर्ल्ड बैंक के द्वारा इन्होंने कर दिया शुरू अपना SAPs और वो लोन वगैरह। फिर उसके बाद अब ये इनका स्टेज सेट हो गया। अब हुआ क्या, तो इकोनॉमिकली इनको काफी बेनिफिट हुए, MNC वगैरह इनकी काफी वर्ल्ड वाइड स्ट्रेंथन हो गई। मैनुअल वॉलस्टीन ने इनको क्रिटिसाइज कर दिया उस ग्राउंड पे कि ये कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगला मैंने स्कॉलर बता दिया रमेश ठाकुर और जॉर्ज हिंग, ये बोल रहे, इन्होंने इलीगल जो अपनी मूवमेंट होती है गुड्स वगैरह की, दैट इज इन बिलियंस, है ना, तो डॉलर बिलियंस में है, तो उसके बारे में मैंने थोड़ा सा लिख दिया कि उससे भी इनको काफी फायदा हो रहा है। तो इकोनॉमिक वाला खत्म करने के बाद कल्चरली भी 25 सालों में इनको बहुत
प्रायोरिटी मिल गई, उन्होंने अपने गाने, म्यूजिक, फिल्में, बर्गर, कॉफी सब कुछ बेच दिया, लैंग्वेज बेच दिया सब दुनिया को, और स्ट्रक्चरलिस्ट इसकी बहुत क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। फिर उसके बाद अब इशू क्या है, ये सब होने के बाद इशू ये है कि अब इनको प्रॉब्लम हो रही है कि अब बहुत ग्लोबलाइजेशन हो गई, अब एंटी माइग्रेंट स्टांस आ गया इनका। अब ये ऐसे कंसिडर करते हैं कि इमिग्रेशन पॉलिसी स्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि हम इनका बर्डन नहीं उठा सकते। अब मल्टीकल्चरलिज्म इनको इतना सही नहीं लग रहा है, जैसे फ्रेंच वगैरह वाले। फिर सैंक्शन और ट्रेड डेफिसिट, अब इनके खुद के ट्रेड डेफिसिट होने शुरू हुए हैं, तो इन्होंने सैंक्शन और ट्रेड वॉर वगैरह वाला सिस्टम पकड़ लिया। फिर जो ये जैसे पहले भी ये राही महफूज राही ने बताया कि एंटी ग्लोबलाइजेशन स्टांस आ है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत और। फिर स्टिग्लिट्स की ओपिनियन कि अमेरिकन जो हैं, स्टिग्लिट्स ने ऐसे बोला कि जो वेस्टर्न कंट्रीज में जैसे अमेरिकन है, जो मिडिल क्लास अमेरिकन है एवरेज, उनको भी नुकसान हुआ है। ये मैम के नोट्स में ही है कि जो कॉर्पोरेट से सिर्फ वही बने हैं बाय द टाइम, अब वो इतना सपोर्ट नहीं करते, इसलिए ये ज्यादा आ रहा है एंटी ग्लोबलाइजेशन स्टांस। और जो नोएम चॉम्स्की है उसने भी यही बोला है कि जो अमेरिकन है उनको पसंद नहीं है कि उनके सोल्जर्स जो हैं वो मतलब किसी कंट्री की मार्केट कैप्चर करने के लिए वहां पे वॉर पे चले जाते हैं, तो अब उनका इनर स्टांस, जो कंट्री के अंदर वाले स्टांसेस, वो एंटी ग्लोबलाइजेशन हो रहे हैं। फिर थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करते हुए मैंने यही बोला कि जैसे अब इनके खुद के ट्रेड डेफिसिट होने लग पड़े। अब जैसे चाइना आ गया मार्केट कैप्चर करने, हुआवी वगैरह 5G वगैरह लेके, अब इन्होंने नई मतलब स्कीमें लगा ली हैं, मतलब सिक्योरिटी कंसर्न्स वगैरह इसके रिलेटेड। तो ये एंटी ग्लोबलाइजेशन स्टांस पे ज्यादा अब जाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें जैसे सिक्योरिटी कंसर्न्स और वो बोल के। बट एट द एंड मैंने वही लिखा कि द रेस टू सेल प्रोडक्ट्स एंड कैप्चर मार्केट इज इन फुल पेस। अभी भी पूरे लगे हुए हैं अपने जोर पे। जैसे अभी किसी ने फ्रीजर कार्य का बोला था, शायद ये उसी से लिंक हो जाए। एंड रैपिडली एंटी ग्लोबलाइजेशन एलिमेंट्स आर ग्रोइंग टू, स्पेशली इन टाइम्स ऑफ कोविड। तो ओके इसका भी। फिर एंड मैंने ऐसे करा समीर सरान से कि जो एक्चुअल ओपिनियन में ग्लोबलाइजेशन तो अभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि सारा सामान वगैरह लगा हुआ है अभी भी बेचने। तो ऐसे होना चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन सभी को सर्व करे, पूरी डाइवर्सिटी का ख्याल रखे, सभी को इसमें फायदा हो, और जो टेक्नोलॉजीज आगे आएंगी वो ह्यूमैनिटी को सर्व करें रादर देन कि उनको एक्सप्लॉइट करें। विन विन सिचुएशन बन जाए। हाँ ठीक है, सही लिखा है मेरे ख्याल से तो यार। और नेपोलियन सोलो, नीलेश भाई और क्या ऐड करना है? उसमें बेसिकली मतलब सारा शिवानी का स्ट्रक्चर है ज्यादा अच्छा था, एक्सेप्ट कि जो कंक्लूजन है उसमें मतलब हम लोग जो मैम के नोट्स में थे, लैरी समर्स का, दूसरा उसका था बीकू पारेख का, उन्होंने काफी फॉरवर्ड लुकिंग जो है वो दिया था कंक्लूजन। लाइक मैं रीड कर देता हूँ। बीकू पारेख का तो ये था कि देयर इज अ नीड फॉर कॉस्मोपॉलिटन आइडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी बिटवीन सिविलाइजेशन। और दूसरा लैरी समर्स का ये था कि देयर इज अ नीड फॉर रिस्पॉन्सिबल नेशनलिज्म and sensible international cooperation, cooperation. ये दो थोड़े मुझे फॉरवर्ड लुकिंग लगे तो मैंने इसको इंक्लूड किया था। बाकी आई थिंक शिवानी का थोड़ा टू द पॉइंट स्ट्रक्चर है वो ज्यादा सही रहेगा। मेरा वाला मैंने भले ही मतलब थोड़े स्कॉलर्स वगैरह ऐड कर रखे हैं, लेकिन थोड़ा मेरा स्ट्रक्चर ऊपर नीचे हो रखा है। अच्छा, मुझे लगता है पॉइंट्स अच्छे हैं काफी बीच में, स्ट्रक्चर का ये थोड़ा कि वो लिंक नहीं बनता, पर अच्छे पॉइंट्स। ठीक है। मुझे लगता है जो भीखू पारिक वाला स्टेटमेंट है उससे पहले जस्ट एक ये छोटा सा मेंशन ये दे देना है कि जो अभी तक जो ग्लोबलाइजेशन था इट वाज मेनली बेस्ड ऑन लिबरल वैल्यूज। तो मेरे ख्याल से थोड़ा कनेक्ट आ जाएगा। और अब जो हम आगे जो फ्यूचर में जो ग्लोबलाइजेशन एक्सपेक्ट करते हैं वो थोड़ा कॉस्मोपॉलिटन हो, यही ना? हेलो, हाँ। ठीक है। तो इसमें मुझे लगता नहीं है और कोई स्कोप बचा डिस्कशन का। कुछ और किसी की तरफ से? Like in this question, we can add issue of economist which came last year. So उसमें कहा था कि there are 3 critical junctures which define the approach of Western world towards globalization. पहला तो उसमें 2008 global financial crisis हुआ था. Second was US-China trade war, and third is the COVID-19 crisis. So it is first time in many years, like first time in a century, we can say that globalization, especially in Western world, is facing 3 crises within a decade. तो वी आर टॉकिंग तो ऐसा हुआ है, लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है? तो सबसे मेन रीजन है कि 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में जो ट्रस्ट था वेस्टर्न वर्ल्ड का ग्लोबलाइजेशन में, वो कम हो गया है। और उसके बाद शिवानी added many examples, लेकिन we should add some specific examples also, like Yellow Vest movement, we are 99% protest। तो थोड़ा लगेगा कनेक्ट कि कैसे कैसे प्रोटेस्ट हो रहा है और कैसे चीजें चेंज हुई है। Other than that, I think we have discussed enough. हाँ, बढ़िया पॉइंट्स बोले। हाँ, मुझे लगा सही है। उसको ग्रुप में डाल देना पड़ेगा ना।
सचिन या ठीक है भाई, ग्रुप में डाल देना ये वाला जो लास्ट वाला जो पॉइंट था ना, कि ये जो 3 जो वो हैं इश्यूज जो फेस कर रहे हैं वेस्टर्न ओके वर्ल्ड। ओके ठीक है ठीक है ऐड कर दूंगा मैं। ओके ओके, नेक्स्ट पे चलें फिर। हाँ हाँ ठीक है, क्रिटिकली एग्जामिन ग्लोबलाइजेशन फ्रॉम थर्ड वर्ल्ड पर्सपेक्टिव। अच्छा, पहले वेस्टर्न और अब थर्ड वर्ल्ड। ठीक है, तो मेरे ख्याल से देखो इंट्रोडक्शन में तो कोई इशू है नहीं, वो तो अपना शॉर्ट एंड स्वीट है। कंक्लूजन भीखू पारिक वाला मुझे ठीक लग रहा है, क्योंकि वेस्टर्न जो थर्ड वर्ल्ड है वो थोड़ा क्रिटिसिज्म ही देगा, तो भीखू पारिक वाला ठीक है। बस ये मुझे लिखना था, मैंने लिखा था, डाला था शायद। डाला था आपने? हाँ इसके अंडर डाला ही नहीं है क्या? इसके अंडर ही डाला था कि मतलब सीधा डाला था? ग्रुप में डाला होगा। था। No, no, he posted in the group. ओके, कितने बजे डाला था भाई अराउंड? I think he posted in the अभी group. मैं 6:30। हाँ ये रहा। तो भाई बता दो ऐसे इंट्रोडक्शन क्या करा, हाँ तो बॉडी क्या ऐसे ही करी? मैं बता दे रहा हूँ। मैंने जो है थॉमस फ्रीडमैन का वो इंट्रोडक्शन लिया है, वो वाली जो प्रोसेस वाली है। ठीक है, बॉडी ठीक है, एक्चुअली मैंने लिखना ये चाह रहा था कि मैं पहले थोड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखा दूँ ग्लोबलाइजेशन का, और फिर उसके बाद मैं क्रिटिसिज्म लूँ जो डेवलपिंग वर्ल्ड का है। तो क्रिटिसिज्म में डेवलपिंग वर्ल्ड का मैंने लिया है, तो एक तो इसका पोस्ट कॉलोनियल स्कॉलर्स का लिया है मैंने, जो इनसिक्योरिटी डायलेमा है, और पोस्ट मॉडर्निस्ट लिया जैसे कि एडवर्ड सईद का, वो वाली मैंने लिया है। और हाँ, उससे पहले मैंने जो इमनुअल इसका मार्क्सिस्ट वॉलरस्टीन। स्कॉलर इमनुअल वालरस्टीन का लिया है, क्योंकि वो बोलता है तो ऐसे मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव है, लेकिन वो डेवलपिंग पोस्ट कॉलोनियल या डिपेंडेंसीज के बारे में बोलता है, इनका इसलिए ऐप्ट है मैंने पूरी लिखा है तरीके इसको। से। ठीक है, यार एडवर्ड सेड क्या बोलता है? एडवर्ड सईद बोलता है तो वो कल्चरल ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करता है कि कैसे लिटरेरी या जो है एक तरह से वो इंटेलेक्चुअल कैसे अफेक्ट करता है ग्लोबलाइजेशन के थ्रू से। एक तो ये है कि जो डेवलपिंग जो पोस्ट कॉलोनियल स्कॉलर्स है उनको वो जैसे एथनोसेंट्रिसिटी के बारे में बताते हो। ओरिएंटलिज्म ना। हाँ हाँ, तो वो कल्चरल ग्लोबलाइजेशन के बारे में। और फिर तो मेरे पास ज़्यादा था नहीं, और मैंने इंडिया का पर्सपेक्टिव मिस कर गया, और जैसे कि भीखू पारिक वाला मैं डाल सकता था उसमें। उसको कंक्लूजन में डालना चाहिए वैसे, अगर आप डालना हाँ भूल भी गए। कंक्लूजन मैंने ये देखा कि थोड़ा उसको मैंने पॉजिटिव डाला कि जैसे कि इंडिया चाइना है वो बेनिफिट, वो ग्लोबलाइजेशन से बेनिफिट, जैसे फ़ायदा हो रहा है इसको। और और फिर मैंने उसका जो जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ का है डेमोक्रेटिक डेफिसिट है, तो मैंने ये सजेशन दिया कि जो डेमोक्रेटिक डेफिसिट है ग्लोबल इंस्टीट्यूशन में, उसे ख़त्म करना चाहिए। और फिर मैंने एक जगदीश भागवती की जो है वो है ना हाँ कि हाँ, वो ग्लोबलाइजेशन सोशल गुड वाला, उससे आपने को, हाँ कंक्लूड इसको, किया। हाँ। और ठीक है। फिर मैंने उसको कहीं कि वो कैपेसिटी बिल्डिंग वाला लिया है इसका अमृत सेन का। तो ये दोनों कंक्लूजन में डाल दिया आपने? हाँ जगदीश भागवती वाला और फिर अमृत सेन वाला, दोनों को मैंने नाम नहीं लिखा अमृत सेन का, लेकिन मैं हाँ कैपेसिटी बिल्डिंग वाला डाला हूँ उसमें। हाँ, फिर ठीक है, क्योंकि दो स्कॉलर के नाम दे देते हैं तो कंक्लूजन बहुत हैवी हो जाता है। हाँ जगदीश भागवती मैंने एक का नाम दिया है। ठीक है, कंक्लूजन और इंट्रो पे तो हम ब्रॉडली एग्री करते ही हैं। बॉडी में किसी को और कुछ ऐड करना है तो बताओ। यार पॉजिटिव क्या क्या दिखेंगे ग्लोबलाइजेशन के? बहुत कम मिल रहे थे मेरे को यार। पॉजिटिव ये लिख सकते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका भी वर्ल्ड ट्रेड में शेयर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। चाइना और इंडिया अच्छे एग्जांपल हैं, और ठीक है, हाँ। नई मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमीज भी आई हैं, जैसे वियतनाम है, साउथ कोरिया है। ये लिख सकते हैं मेरे ख्याल ठीक से। है, हाँ हाँ आई थिंक इसमें ये भी लिख सकते हैं ना, पॉवर्टी एलिवेशन हाँ हाँ काफी हाँ हाँ हाँ, सिग्निफिकेंट रहा है इंडिया और चाइना के केस में। मतलब मिलियंस के, मेरे को फिगर एग्जैक्टली याद नहीं, बट एक बार 270 मिलियन इन केस ऑफ इंडिया इन लास्ट 10 ईयर्स। हाँ ग्लोबलाइजेशन जो है वो कंपैरेटिव एडवांटेज को वो फैसिलिटेट करता है एक तरह से, कि उससे रिकार्डो की फायदा थ्योरी होता है थी। कंट्रीज। ठीक है, Because there's a one एक और point. फैक्ट है इसमें कि Okay, there's a one point from Ban Ki-moon. I think it's important that globalization is exposing new fault lines between urban and rural communities, and we can quote any example attached with it. ओके, आई थिंक वी कैन डू दिस। बैन की मून, राइट? Ban Ki-moon, our ओके ओके, former. इज या दिस फॉर्मर यूएन। एडवांटेज? Right, right. एडवांटेज था के? एडवांटेज तो Advantage. There are so much fault lines. I mean, there are negative side of globalization. या नेगेटिव साइड, दैट्स राइट। ठीक है, और कोई एडवांटेज है क्या Yes, ग्लोबलाइजेशन what का, is that पॉजिटिव statement? पॉइंट? स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है
जी पॉजिटिव ग्लोबलाइजेशन का ये भी हो सकता है कि एक ग्लोबल कंसेंसस बनाने के लिए कोई भी इशू पे, जैसे कि इन्वायरमेंट हो गया और ट्रेड हो गया, ये सब पे, तो ये ग्लोबलाइजेशन का एक है जो फैसिलिटेट करता है प्रोसेस बिल्डिंग में। ठीक है, और कोई पॉजिटिव? हेल्थ, एलिमिनेशन ऑफ मलेरिया। करेक्ट, हाँ, एलिमिनेशन ऑफ डिसीजेस बोल सकते हैं। डिसीज बोल सकते हैं। पॉवर्टी, मतलब गावी अलायंस वगैरह भी डाल hunger, सकते हैं, गावी SDG goals अलायंस। actually, you can write everything SDG. लेकिन इतना नेगेटिव Like, डालेंगे, मतलब सॉरी, इतना वो कहाँ करेंगे, थोड़ा बैलेंस रखना चाहिए ना। और कोई पॉजिटिव है क्या? globalization, we have done good for like third world Dissemination countries. of information, global supply chain. न्यू टेक्नोलॉजी। dissemination of technology, education, research development. यार ग्लोबलाइजेशन के तो बहुत सारे एडवांटेजेस है ना, कुछ भी लिख दो। हाँ, yoga, lot हमारा of yoga. ठीक है, हाँ, लोकल कल्चर टू ग्लोबल, ये भी ठीक है, जो हमारा कल्चर है वो भी ग्लोबल गया है, तो ये भी एक अच्छा एडवांटेज है योगा वाला। ठीक है। और एजुकेशन में भी इसका एडवांटेज है, जैसे कि हम लोग का बाहर के बुक्स पढ़ रहे होते हैं, तो उससे नॉलेज शेयरिंग वाली कंसेप्ट। ठीक है, ठीक है। 6 पे चले। हाँ चलो नेक्स्ट। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट। ये थोड़ा थोड़ा ओवरलैप करता है, क्वेश्चन हमने वो भी किया था ना, उसके अंडर आई थिंक सेकंड डे में किया था कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स हैव क्रिएटेड द क्राइसिस ऑफ नेशन स्टेट, ऐसा कुछ था ना वो, तो उसमें एक्सटर्नल फैक्टर वाला शब्द डाल सकते हैं इसमें। करेक्ट। तो गौरव शर्मा एंड मोनिका, ऑल्सो समीप मोहन। बॉडी से शुरू करते हैं। हेलो 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 हेलो, आ रहा है आवाज, आवाज आ रहा है। अरे तो बोलो तो सही मैं कोई। स्टार्ट करूं? हाँ, बॉडी से स्टार्ट करना। तो ठीक है, तो इसमें अपन को इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ स्टेट की बात कर रही थी। तो वो जो मैंने इसमें मेन जो लाइन सबसे अलग लिखी, ऐसा मुझे लगता है कि मैंने इसमें ये मेंशन किया है कि हम लोग जो बिलीबर्ड बोर्ड मॉडल से हैं उसकी तरफ हम लोग कॉबवेब मॉडल की तरफ चले गए। ठीक है। ठीक है, उसके बाद मैंने है ना हाइपर ग्लोबलिस्ट और ट्रांसफॉर्मलिस्ट और जो रॉबर्ट गिलिपन है स्पेक्टिक्स, उन तीनों को मेंशन किया है इस आंसर में। जो हाइपर ग्लोबलिस्ट हैं वो लोग ये बोलते हैं कि जो पूरी जो स्टेट की जो सॉवरेनिटी है वो चली गई है और जो सिर्फ बचा हुआ है सिर्फ ग्लोबलाइजेशन ही बचा हुआ है। ठीक है। ठीक है, उसके एग्जाम्पल है मार्शल मैक्लुहान। ठीक है। जैसे कि अपन एग्जाम्पल देख सकते हैं, जो इन्वायरमेंटल लॉज है जो 1980s में आए थे, तो सारे स्टेट्स को बनाने पड़े थे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो फिर उसके अगेंस्ट में आते हैं अपने स्पेक्टिक्स, जो बोलते हैं कि नहीं नहीं, स्टेट की जो सॉवरेनिटी है वो अभी भी बची हुई है, स्टेट सेंट्रिक अप्रोच रखते हैं, जिनको रियलिस्टिक कहा जाते हैं, जैसे कि रॉबर्ट गिलिपन। ठीक है। फिर आते हैं ट्रांसफॉर्मलिस्ट, जो मतलब बहुत ज्यादा बैलेंस व्यू रखते हैं, जैसे कि डेविड हेल्थ, तो उन्होंने बोला था इट इज नॉट अ जीरो सम गेम। कुछ जो स्टेट्स हैं उन लोगों को एडवांटेज हुआ है, जैसे कि एडवांस कंट्रीज हैं जिनको पहले एडवांटेज हुआ था, वो फ्लैग बेयरर थी, लेकिन अब है वो लोग प्रोटेक्शनिस्ट हो गई हैं। और जो एशियन टाइगर्स हैं वो फ्लैग बेयरर हो गई। आप एग्जाम्पल दे सकते हो चाइना का। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने लिखा था कि इट इज बीइंग सीन कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी को बताता है और वो स्टेट की फंक्शन का एंटीथेटिकल है, पर ये जो व्यू है वो सही नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा था कि जैसे कि आप ईयू का एग्जाम्पल ले सकते हो, जो क्लोजेस्ट एग्जाम्पल है ग्लोबलाइजेशन का, लेकिन वहां पे भी अपन नेशन स्टेट का जो कंसेप्ट है वो प्रेवलेंट देख सकते हैं। फिर उसके बाद मुझे कंक्लूजन को समझ नहीं आया तो मैंने अब्रप्टली वहीं छोड़ दिया था इसको। मुझे लगता है बॉडी में तो काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं, फिर भी अगर किसी को बॉडी में कुछ और पॉइंट ऐड करने हो, वैसे तो सारे सॉवरेनिटी वाले मेरे ख्याल सारे पॉइंट ऐड हो जाएंगे। स्टेट सेंट्रिक में कोई एग्जांपल याद आ रहा है क्या?
मतलब स्टेट स्टेट। सेंटर, ये रॉबर्ट गिलपिन वाला। अच्छा। आई थिंक वो यूएस वाला एग्जांपल कोट कर सकते हैं ना, कि यूएस ने जो जजेस की अपॉइंटमेंट थी वो ब्लॉक कर ली थी, नहीं लिख सकते? हाँ नहीं, सही बोल रहे, सही बोल WTO। या यार मेरे को Dispute इसका इंटरप्रिटेशन settlement। कुछ या इंट्रोडक्शन। नहीं, मेरे को इंटरप्रिटेशन में कुछ अलग लगा। मतलब जैसे मोनिका ने बताया, मोनिका ने क्या किया है कि ग्लोबलाइजेशन का स्टेटस बताया कि ग्लोबल हाइपर ग्लोबलिस्ट कैसे देखते हैं ग्लोबलाइजेशन को, स्टेट सेंट्रिक कैसे देखते हैं, और बाकी ट्रांसफॉर्मेशन मतलब वो मिडल वे में देखते हैं। बट क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ स्टेट पूछ रहा है कि ग्लोबलाइजेशन कैसे इम्पैक्ट कर रहा है इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ स्टेट। तो हमें मोर ओवर स्टेट सेंट्रिक का ही व्यू देना है कि किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन क्या क्या कैसे कैसे इम्पैक्ट करता है, कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट, कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट। मुझे लगा शायद इस पे ज्यादा फोकस करना है ना। नहीं मतलब मुझे लगता है ना कि PSIL का क्वेश्चन है तो जो मोनिका ने व्यू लिया वही लेना पड़ेगा। ऐसे उसमें जो राइट की एग्जांपल भी मुझे लगेगा कि सॉवरेनिटी का है तो ये हाँ, आई थिंक सही बोल रहे हो कि उसको बस कट रहा है यार सचिन। बोलो संजय, बोलो। हाँ ठीक है, तो मेरे ख्याल से मोनिका ने सही लिखा है, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं जब स्टेट का इंटरनल फंक्शनिंग देखते हैं ना, तो उसको कहीं ना कहीं हम इस चीज से रिलेट कर सकते हैं कि कैसे ग्लोबलाइजेशन ने उसको इम्पैक्ट किया, कि कैसे उसकी सॉवरेनिटी जो है वो डिक्रीज हुई है। ठीक है, तो आई थिंक ये तीनों जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ग्लोबल स्टेट सेंट्रिक और ट्रांसफॉर्मेशनिस्ट, इसमें वो चीज कवर अप हो जाती है। Samir wants to say something. हेलो। हाँ जैसे कि मैं एक्चुअली मैं बोल रहा था कि Yes, please continue. आप बोलो सुमित। मैंने समीप बोलो। हेलो समीप, दिल पे ले गया। तू बोल रहे समीप दिल पे ले गया, छोड़ो। महफूज तू बोल ले भाई अब। ये भी दिल पे ले गया। तो पलाश, सचिन, कौन बोल रहा है भाई? हेलो। हाँ, इम्पैक्ट पड़ा है। हाँ तो मैं बोल रहा था कि तो पर्सपेक्टिव वगैरह उन लोगों ने आखिर में स्टेट के ऊपर ही दिया है तो वो यूज तो कर ही सकते हैं। प्रॉब्लम बस ये है कि उसको सब्सटैंशिएट करना पड़ेगा एग्जांपल से, तो कि हम डायरेक्शन बता सके कि वो आखिर में फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट इंटरनल के बारे में बात कर रहा है। क्योंकि आखिर में उन लोगों ने ओवरऑल जो थियरी दी थी वो उसमें दी थी ना। somebody has added somebody has added we can take the example of you Sachin, you are not audible. You are not audible. functioning of state में major. Sachin, please Is it write in audible the now? comment box. Your voice is breaking. Okay. And Nilesh, if your network is stable, please start again. No, Nilesh, no. Sameep, sorry, Sameep. We can अभी आ रही है these आवाज? goals. आ रही है आवाज। हाँ, तो मैंने बेसिकली उसको इंटर फंक्शनिंग को का जो पॉइंट था उसको लिया एंड आई लाइक टुक इनटू कंसिडरेशन सारे जो वेरियस एक्टर्स हैं। तो जैसे पहले मल्टीनेशनल कोऑपरेशन, देन एनजीओज, देन ग्लोबल सिविल सोसाइटी, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, उस लाइन पे मैंने लिया कि हाउ वेरियस की एक्टर्स आर इन्फ्लुएंसिंग द इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट। ओके। और लास्ट पेज पे आई हैव टेकन की इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट, मतलब आई हैव टेकन द काउंटर व्यू ऑफ इट, कि एक तरफ मैंने बोला है कि हाउ दे आर इम्पैक्टिंग द इंटरनल फंक्शनिंग एंड देन टुवर्ड्स द एंड आई हैव सेड हाउ दे आर नॉट इम्पैक्टिंग। तो उस लाइंस पे ऐसे स्ट्रक्चराइज किया है उसको। थोड़ा ये एक लिंडा वाइस वाला जो पैराग्राफ है थोड़ा लंबा हो गया, उसको छोटा किया जा सकता है बहुत आराम से, तो वो ठीक है। बाकी आई गेस, और लास्ट में एक रियलिस्ट वाला एग्जांपल भी दिया है कि रियलिस्ट वाला तो मतलब एवरग्रीन है, जब भी स्टेट की सोवरेनिटी पे क्वेश्चन करें तो रियलिस्ट का एक काउंटर रहता है उस पे। तो बेसिकली आपने तो जो वो एक स्टेट की जो डोमेस्टिक, जो क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक फील्ड में स्टेट कैसे वर्क करता है, उसमें क्या चेंजेस आए आपने उसको शो किया है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे फंक्शनिंग में, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट के तो कोर फंक्शनिंग थे करेंसी और एक्सटर्नल ट्रेड से रिलेटेड इकोनॉमिक, तो स्टेट के वो एक कोर फंक्शन काफी हद तक
मतलब रिस्ट्रिक्ट हुआ है आफ्टर इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। एंड देन जैसे एनजीओ वगैरह भी हैं, तो फॉर एग्जांपल नेशनल ट्रांसनेशनल एनजीओज हैं, करते हैं स्टेट की पॉलिसीज को, तो वो एक तरह से इंटरनल फंक्शनिंग पे इफेक्ट हो गया। तो ठीक है। और क्या एग्जांपल लिया था? एमनेस्टी इंटरनेशनल लिख सकते हैं इसमें। हाँ, उसमें एक सूजन स्ट्रेंज का एक वो था, क्या कहते हैं, कोट है कि मार्केट बिकमिंग मास्टर ऑफ स्टेट्स। ओके। पहले स्टेट्स वर द मास्टर ऑफ मार्केट, नाउ मार्केट्स आर बिकमिंग मास्टर ऑफ स्टेट। तो मार्केट डिटरमिन करता है इंटरनल इकोनॉमिक पॉलिसीज या जो भी है। मुझे लगता है ये समीप वाला भी अच्छा है। मुझे मतलब मैंने लगता है किया, दोनों को अगर मिक्स करके लिखेंगे तो हाँ सही एक्चुअली रहेगा, ज्यादा हाँ शी इज राइट एक्चुअली। बैलेंस मैंने रहेगा। वो जो बोल रही है वो बात सही है कि मतलब वो तीनों, हम ग्लोबलाइजेशन के क्वेश्चन में वी शुड एक्चुअली टेक इनटू कंसिडरेशन, कहीं ना कहीं वो तीनों को इंक्लूड करना चाहिए कि जो स्केप्टिक्स हैं, फॉर एग्जांपल स्केप्टिक्स वाला पॉइंट जो मैंने बाद में क्रिटिसाइज किया, तो वहां पे स्केप्टिक्स को मेंशन किया जा सकता है। हाँ, फिर तो आपके से और मोनिका के समीप तूने पॉइंट्स उठा के skeptics पे क्या कंसोलिडेट कर सकते हैं। समीप स्केप्टिक्स पे क्या एग्जांपल डाला है? स्केप्टिक्स में एक तो लिंडा वाइस का एग्जांपल है, जो मैंने डाला है। वो लिंडा वाइस का कहना है कि जनरल कन्वेंशनल विजडम आजकल ये हो गया है कि स्टेट्स आर लूजिंग देयर पावर, बट लिंडा वाइस की बुक है, उसमें वो कहती है कि स्टेट की पावर भी मेंटेन है और कुछ जगह पे बढ़ भी रही है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर बेस्ड सर्वेलेंस वगैरह जहाँ पर है। करेक्ट तो करेक्ट। वो उसकी बुक में उसने पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली साइट किया है वो वर्ड, तो मतलब हम कर लिख सकते हैं आराम से। हाँ, तो आई थिंक इसके लिए स्पेसिफिक वर्ड वो है ना, आर्टिफिशियल फेशियल क्या है वो? तो मतलब समीप समीप वाले से हमें एक पर्सपेक्टिव मिल गया, मोनिका वाले से एक पर्सपेक्टिव मिल गया, दोनों को कंसोलिडेट करके एक परफेक्ट आंसर बन सकता है, राइट? हाँ, और एक पॉइंट और मैंने लिखा था कि स्टेट का रोल इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन में अभी भी क्रूशियल है, कि फॉर एग्जांपल इवन दो एमएनसीज और ये सब हम एफडीआई वगैरह के लिए उन पे डिपेंडेंट हैं, ये बात सही है, बट एट द सेम टाइम चाइना का हम देखें, इवन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो चाइना ने भी काफी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट किया था, दैट फैसिलिटेटेड देयर, मतलब वो एफडीआई वगैरह को फैसिलिटेट करता है। तो स्टेट का रोल इंटरनल फंक्शनिंग में, इवन इकोनॉमिक फील्ड में भी खत्म नहीं हुआ है। राइट तो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह प्रोवाइड करना, स्किल डेवलपमेंट करना, वो अभी भी स्टेट का ही काम है। राइट, जिससे कि एफडीआई और ज़्यादा बढ़ जाए मतलब। मतलब आई बेसिकली क्रिएटेड दैट पॉइंट, तो मैंने ऐसा मेरे ठीक को है। लगता है कि वहाँ पे तो उसको ठीक। सब्सटेंशिएट मैंने चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन वाली उससे किया। ठीक है। और मुझे लगता है ये कंक्लूजन में ये रियलिस्ट वाला पॉइंट अच्छा है, क्योंकि स्टेट से रिलेटेड बात हो रही है ना, तो रियलिस्ट वाले ठीक रहेंगे। ठीक है ना, किसी को कुछ ऐड करना है? कंक्लूजन में शायद ट्रांसफॉर्मलिस्ट वाला शायद ज्यादा सही रहेगा, डेविड हेड वाला। अच्छा, मतलब एक बैलेंस दिया था जो उन्होंने। हाँ, बैलेंस ही रहना चाहिए ना, मतलब कंक्लूड हाँ हाँ, या तो बैलेंस या फिर हाँ, ऑप्टिमिस्टिक। आइडियली मेरे पास जगह खत्म हो गई थी इसलिए मैं लिख नहीं पाया, बट आइडियली वही होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेशनिस्ट जो हैं उनके पर्सपेक्टिव से बैलेंस्ड ओपिनियन ही कंक्लूजन होना चाहिए। या इट्स नॉट अ जीरो सम गेम, वो वाला है ना जो मोनिका ने लिखा है। हाँ ठीक है। राइट। ठीक है, किसी को कुछ ऐड करना है इसमें? Yeah, like physical discipline, like in New York Declaration, that helps, right, in policy making of our state. Varun, there is some disturbance from your side. Okay, there is a New York Declaration of physical discipline. Physical discipline, you are saying? Yeah. Okay. That helped in our regulation of our physical justice, 2 to 3.5. Yeah. हाँ, एक्चुअली दैट पॉइंट वी हैव, वो पॉइंट मैंने लिखा था कि जैसे आईएमएफ ने स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम को पुश किया ना, तो इकोनॉमिक पॉलिसीज आर डिटरमिन्ड बाय इंटरनेशनल मतलब पुश बाय ऑर्गेनाइजेशंस। आईएमएफ। हाँ, तो वो पहले के शुरुआत के पॉइंट्स में आ सकता है कि हाउ इट इज अफेक्टिंग इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ स्टेट, इकोनॉमिक पॉलिसीज को कैसे अफेक्ट करता है। तो उसमें ठीक है। फिजिकल डिसिप्लिन वाली चीज भी आएगी कि वी हैव बेसिकली एक्सेप्टेड द नियो लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज जो होती हैं, कि टैक्स रेट कम करो, फिजिकल डिसिप्लिन मेंटेन करो, हाँ डेफिसिट हाँ, वगैरह कंट्रोल में रखो, सही है। ऑल दिस। ठीक है।
नेक्स्ट पे चले। हाँ नेक्स्ट चलो। ठीक है, एक सेकंड। हाउ इज दैट how is that economic and neoliberal globalization is being interrogated from inside even in developed countries? What are the economic consequences of such globalization? तो इसमें अभी हमने जो वो किया था ना कि 25 ईयर्स का लास्ट का वो वेस्टर्न साइड से दो, उसमें जो हमने जब लास्ट में थोड़ा क्रिटिसिज्म दिया था कि वेस्टर्न कंट्री से कैसे अब उसका क्रिटिसिज्म हो रहा है, मेरे ख्याल से हम उससे स्टार्ट कर सकते हैं इसमें, मतलब बॉडी की स्टार्टिंग में। I had used another quote with Peter Willett. He said, it is no longer possible to regard each country as having its own economy. And then I connected it with the definition. Instead of giving just a definition, I thought this is okay. Okay. हाँ ठीक लग रहा है मतलब। And then in the next paragraph, I just jump to the relevance of economic and neoliberal globalization in general sense, like state's ability to exercise control over currency and foreign trade. And then I just give one scholar to substantiate that. And then I move to the next paragraph, where I specifically talked about developed countries. तो उसमें तो फिर वही जो डीग्लोबलाइजेशन वाला पॉइंट है उसको मैंने 2 पैराग्राफ्स में एलैबोरेट किया एंड कुछ एग्जांपल दे दिए, यूएसए का विड्रॉल फ्रॉम टीपीपी और ब्रेक्जिट, और बाकी देन इन द नेक्स्ट पैराग्राफ आई स्विच टू some more examples giving the global security perspective, the impact of how the terrorist organizations are using globalization tools and impacting these. तो उससे यूएसए और ईयू ने क्या क्या प्रोविजंस लिए हैं उस बेसिस पे। तो बस इसके बाद हाँ डेटा रेगुलेशन वाले प्रोविजन ना। हाँ उसके बाद देन आई स्विच टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन व्हिच वाज इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस। तो उसमें ट्रेड और माइग्रेशन के लिए द बैकलैश वाज देयर and this refugee crisis also leads to the additional responsibility of security and economic balance. ठीक है। And in the next paragraph, then I talked about this gated globalization by James Blake and Shantanu Roy. ठीक है। I first thought it was by Samir Saran, but then I checked that Samir Saran gave this in 2020, but this article was from 2015. Okay. So I thought maybe James Blake and this Shantanu Roy. Okay. And so then I give the examples of this RCEP and Quad. And in the next paragraph, I switch to COVID-19 and this talking about global supply chain and regional supply chain. And then I give just थोड़ा वो theory add करने के लिए मैंने realist का I added perspective. And then in the conclusion, I took Susan Strange, which I think Sameep had also mentioned. Same. But I think in conclusion you have mentioned 2 scholars, right? Yeah, because मुझे लग रहा था कि Susan Strange वाला थोड़ा वो हो रहा है, as in maybe we could have also ended with just Susan Strange also. Yeah, I would say just plan your answer beforehand, right? Don't just try to experiment on the field. No, at that moment I thought that maybe this gives a more balanced opinion, but now when I am rethinking, I thought maybe with just Susan Strange also it's okay. Okay. Because David Huld actually contradicts Susan Strange, so I thought maybe it's a more balanced opinion. ठीक है। So that's how. And इसमें मयंक ने भी लिखा था, he had added the Marxist perspective also, which is nice. Okay. Mayank is here, right? Yes. Yeah, please tell us your approach. Actually, I just defined economic globalization in first paragraph and added कि वो डेविड रिकार्डोस की कॉन्सेप्ट है कंपैरेटिव एडवांटेज, वहां से उसकी थ्योरेटिकल जेनेसिस आती है। ठीक है। In second paragraph, I just told कि economic globalization has always been a contested concept and Marxist और third world countries के scholars तो हमेशा criticize तो करते ही थे। Immanuel Wallerstein ने development of underdevelopment
का कॉन्सेप्ट दिया था. इवन अरुंधति राय calls globalization a mutant variety of colonialism, right, remotely controlled and digitally operated. right. In third paragraph, I have told ki, but the heat of consequences of globalization are being felt in modern world or Western world as well. Mm-hmm. Because इकोनॉमिक राइट्स और सोशल राइट्स जो हैं लोगों के वहाँ पे वीक हुए हैं और रिचेस के जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो स्ट्रांग हुए हैं, जिसकी वजह से वो फील किया जा सकता है वेस्टर्न वर्ल्ड में. वहाँ पे मैंने थॉमस पिकेटी को मेंशन किया है उसकी बुक को कैपिटल इन 21st सेंचुरी. ठीक है. नेक्स्ट पैराग्राफ में जोसेफ स्टिग्लिट्ज को कोट करके ये बोला है कि ग्लोबलाइजेशन वो कहीं ना कहीं वाज ऑलरेडी ओवर स्ट्रेच्ड, मतलब उसकी लिमिटेशंस जो थी वो पहले से दिख रही थी, बट द पैंडेमिक हैज फर्दर इंपैक्टेड इट्स क्रेडिबिलिटी. तो अभी पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट जो है वो ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट जा रहा है, विच इज विजिबल फ्रॉम थिंग्स लाइक अमेरिका फर्स्ट एंड ब्रेक्सिट. और उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में कोविड-19 के डिसरप्शन की वजह से, मतलब ग्लोबलाइजेशन उतना इफेक्टिव नहीं है, वो कोविड-19 का ने जो सप्लाई चेन्स में डिसरप्शन किए उससे वो पॉइंट सब्सटेंशिएट हो गया. बिकॉज ये रेजिलेंट और उतना सफिशिएंटली डाइवर्सिफाइड नहीं है और वल्नरेबल है इंटरप्शंस को लेके, मतलब इंटरप्शंस जो आई हैं कोविड-19 की वजह से. और लास्ट पैराग्राफ में मैंने बोला कि वॉलरस्टीन ने तो बहुत पहले बोला था कि इट्स टाइम टू सिंग द स्वान सॉन्ग फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन, एंड इवन प्रताप बानू मेहता एडमिट्स दैट लिबरलाइजेशन ऑफ मार्केट्स हैज टर्न्ड इनटू कमोडिफिकेशन. उनका एक इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज थी, उन्होंने बोला था कि ये कैपिटलिज्म और लिबरलिज्म जो भी इंटेंड करते हैं अपोजिट ही उसका कॉन्सिक्वेंस हो रहा है. So we need a new model of globalization which may help in achieving the goals which economic globalization originally intended. ये बोल के conclude कर दिया. बस. So ठीक है. So basically इंट्रो तो हम देखो कैसे भी स्टार्ट कर, मतलब जितना मेरे को समझ आ रहा है इस क्वेश्चन में, इंट्रो तो हम कैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं इसमें. वो इंट्रो शानू का जो है उसमें जो कोड डाली है वो अच्छा है, मतलब वो कोड डाली जा सकती है. वो स्कॉलर उन्होंने मेंशन पीटर विलेट्स मतलब इंट्रो तो इकोनॉमिक हाँ इंट्रो तो बेसिकली इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन से ही स्टार्ट करना चाहिए जैसा कि कराया दोनों ने. पर वो उनके कोड जो है वो इंट्रो को काफी इफेक्टिव मतलब बेटर बनाती है. तो डेफिनेटली ठीक है. उसके बाद जैसे हम चलते हैं कि नाउ इट इज बीइंग क्वेश्चन फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज, तो उसमें हम एक दो जो स्कॉलर्स हैं उनको कोट करके बता सकते हैं कि अब डेवलप्ड कंट्रीज भी परेशान हो गई हैं. जैसे शिवानी ने उस अपने एक शायद एक आंसर में भी थोड़ी देर पहले बताया था, काफी सारे एग्जांपल्स है. ठीक है. उसके बाद जब व्हाट आर द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सच ग्लोबलाइजेशन, तो मेरे ख्याल से वो तो हम देख ही रहे हैं, ट्रेड वॉर्स, प्रोटेक्शनिज्म, ये सारी चीजें. और उसके बाद कंक्लूजन में कैसे शानू ने किससे किया था, सुजन स्ट्रेंज और डेविड हेल्ड. ठीक है. कंक्लूजन बताओ यार. कंक्लूजन मेरे को थोड़ा सॉर्टेड सा नहीं लगा. कंक्लूजन के लिए क्या क्या पॉइंटर्स हो सकते हैं. कंक्लूजन जैसे तुम मैसेज मतलब तुमने उसके फीडबैक में सजेस्ट किया था कि ग्लोबलाइजेशन अगर जाता है तो जिंगोइस्टिक नेशनलिज्म को उसे रिप्लेस नहीं करना चाहिए. तो फॉर दैट वी हैव ऑप्शंस लाइक रीजनलिज्म, मतलब सप्लाई वो रीजनलिज्म में तुमने बोला भी था शायद फीडबैक में, तो वो आ सकता था कंक्लूजन में. रीजनलिज्म हम देख भी रहे हैं, बट इवन बहुत सारे स्कॉलर्स इस बारे में बात कर रहे हैं, पराग खन्ना, जोसेफ स्टिग्लिट्ज, so they are talking about that regionalism is replacing globalization because of the disruption created by COVID-19. So we can add that in conclusion by giving a scholar name of a scholar. So मतलब maybe it can add some meaning to the conclusion. थोड़ा सा इंस्पायरिंग या ऑप्टिमिस्टिक सा नहीं होना चाहिए कि भाई ग्लोबलाइजेशन वापस आएगा. मतलब रीजनलाइजेशन इट इज हैपनिंग इन द मीन टाइम, राइट. In the future we only need globalization. Regionalization cannot replace globalization. So I think regionalization से better I think ये रहेगा कि ये ग्लोबलाइजेशन का जो पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, इट इज सॉर्ट ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम वेस्ट टू द ईस्ट. इस लाइन पे लिख दे रीजनलाइजेशन के बजाय, तो वो थोड़ा बेटर रहेगा. बट वो इंडिया के पर्सपेक्टिव में थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा, बिकॉज वी आर मूविंग टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत. मतलब ईस्ट में सिर्फ इंडिया थोड़ी आता है. मतलब गवर्नमेंट इज सेइंग दैट इट इज नॉट प्रोटेक्शनिज्म बट इट इज डेफिनेटली.
Yeah, we can see that countries are beginning to move नहीं मैं towards हाँ more वो मैं समझ रहा inward हूँ बट side. मतलब we are from India and we are writing in Indian exam तो मतलब अगर फ्लो मेंटेन करना है तो जो सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन है उसी को एक्सटेंड कर सकते हैं. द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वाज द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस. नो, हाँ even China is doing so मतलब China is trying to do so. Last time वो Xi Jinping ने इकोनॉमी के बारे में जब बोला था तो ये so बोला था if we are only, we have I to think if we are only talking about this debate between increase developing and internal demand. hello. Yeah, you are audible. Yeah, if we are only talking about this debate between developing and developed, I think we are still stuck in the first part. So I thought that maybe if you're continuing with the second part of the question, so maybe Yeah, we that need is to why. discuss the economic consequences, right? या नहीं वो हो गया. उसके बाद जो लास्ट में कंक्लूजन था ना, दैट इज व्हाई आई यूज्ड दिस सुजन स्ट्रेन्स. वो आई थिंक दैट इज प्रीटी ओके बिकॉज़ शी एक्चुअली क्या बोला स्पीक्स था अबाउट उन्होंने? द, सीधे सीधे फटाफट बता दो, क्या बोला था उन्होंने? she basically speaks about the significance of markets, so which is directly linked with the economic consequence. No, so that is why I thought that's apt conclusion. उन्होंने ये कहा था कि markets is are now controlling the state. But it seems a Which bit is negative to me that markets are no, now which controlling is the state. no हाँ, वन मतलब साइडेड भी है ना थोड़ा. तो इसीलिए फिर उसको मैंने बैलेंस करने के लिए फिर डेविड हेल्ड का मे बी दैट डेविड हेल्ड सेंटेंस कैन बी शॉर्टेंड एंड अब उन्होंने क्या बोला वो फटाफट बता दो. उन्होंने ये बोला था कि कहाँ गया कि स्टेट स्टिल रिटेन्स अ वाइटल रोल इन ब्रिंगिंग इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन. तो अगर सिर्फ इसने भी स्टॉप कर दे और पीछे वाला वो हटा दे तो वो एक पैराग्राफ में आ जाएंगे दोनों का ही. यार मुझे तो थोड़ा सा ये भी नेगेटिव ही लग रहा है. अच्छा, जोसेफ स्टिग्लिट्स वाला ठीक रहेगा, मोनिका जैसे बता रही है. जोसेफ हाँ वो भी कर यूनिवर्सल सकते है. हैं. हाँ हाँ वो सही है यार, मेरे हाँ ख्याल से ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं. ठीक है. हाँ स्टिग्लिट्स वाला भी चाहिए. अरे कोई भी सपोर्टर लेके कर लो यार. हाँ मतलब जो भी ग्लोबलाइजेशन कोई को भी सपोर्ट करे. सपोर्टर तो ले जब लो. ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो अब अपन को ये यहीं से स्कॉलर की कोट करना चाहिए या आप खुद के तरीके से भी कुछ एंड करना चाहिए, होप वगैरह देके या कुछ, जैसे अभी डिस्कस हो रहा था पीछे. आई गेस सबसे सेफ साइड तो ये होता है कोई स्कॉलर देख लो जिसने कुछ बोल रखा है पहले उस पे. अगर वो ना मिले तो खुद ही होप दे दो. अगर ना मिले, बाई चांस ना मिले तो फिर ठीक. ऑप्शन क्या बचा है अच्छा इसमें? एक चीज विकास, ओके. जो था ना फरीद जकारिया का 10 लेसन्स फॉर द पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड, उससे भी तो कर सकता है. उसने ही बोला है ग्लोबलाइजेशन का अच्छा चाहिए मतलब. हाँ ठीक है, कर वो भी सकते अच्छा हैं. था. यार मैंने देखो पढ़ा नहीं है ना, लेकिन अगर वो ऑप्टिमिस्टिक है, सपोर्ट करती है तो कर सकते हैं. क्या दिक्कत है? नहीं वो तो लिबरल ही है वो तो. हाँ हाँ ठीक है ठीक है. करेगा ही. अच्छा आदमी है. हाँ हाँ लड़का है भाई. अच्छा ठीक है. अगले पे चलते हैं. Elaborate the factors which cause north-south divide in the age of globalization. ठीक है, सीधा बॉडी पे कूदते हैं. बॉडी बताओ, नॉर्थ साउथ डिवाइड किस किस फैक्टर से होता है? एक तो मेरे ख्याल से इंस्टीट्यूशन ही खुद ही करते हैं. अच्छा पीएस ने लिखा है, चलो पीएस का असली नाम क्या है? सुषमा. ओके है वो, तो बता दे अपना आंसर एक बार. वो वर्ल्ड मैप भी है, राइट. और कोई है क्या? और कोई नहीं है यार, इसी ने आंसर लिखा है बस. गायत्री ने और शिवानी ने इस पे रिव्यू दिया है. ये क्वेश्चन किसको दिया था ये? हाँ, इस आंसर में बेसिकली इन्होंने, बताऊं क्या करा है पीएस ने. इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड मैप बना के थोड़ा एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया कि नॉर्थ क्या है साउथ क्या है यहाँ, है ना. तो मेरे को ये थोड़ा इतना ज्यादा लगा नहीं वायबल. इसके बाद इन्होंने थोड़ा सा बताया कि कौन से मतलब नॉर्थ साउथ डिवाइड होता किससे. तो पहले क्लाइमेट ले लिया उन्होंने, उस पर काफी सारे फैक्ट्स हैं बीच में आंसर में. फिर इकोनॉमी के कुछ फैक्ट्स लिए हैं और एक आध और पॉइंट है उस पर कंक्लूड करा है. अच्छा यार आई थिंक इसको तो थोड़ा लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से लिमिटेड रखना चाहिए. अगर ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ हो तो अंडरस्टूड है, तो ग्लोबलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखा जा रहा है. लाइक अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू बोलो तो एक मार्टिन एल्बो करके स्कॉलर है, उसने भले ही मतलब सिंपल डेफिनेशन दिया था कि प्रोसेस बाय व्हिच द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ सिंगल
वर्ल्ड ग्लोबल सोसाइटी। हालांकि उसने क्लियरली बताया था कि दिस इज आल्सो नोन एज द ग्लोबलाइजेशन ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, सॉरी कोलोनाइजेशन ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, जो न्यू कॉलोनिस्ट वाला एक्सपेंशन बताया था कि वो कुछ नहीं रहा है, एक तरह से यूरोपियन पावर्स फिर से जो है इंपीरियलिज्म का नाम लेके अपनी कॉलोनीज को एक्सपेंड कर रहे हैं, और उसी को ग्लोबल साउथ नाम लिया जा रहा है, जहाँ पे जो है आपके ये मीन्स ऑफ सॉरी ये रॉ मटेरियल्स जब प्रोड्यूस को वो देखा जा रहा है कि जहाँ से हमारा रॉ मटेरियल्स आ सकता है, और हमारे जो है मतलब जो भी मतलब जैसे अगर अफ्रीका है, चाहे हम जैसे उसमें शिमला मैम के नोट्स में था, एक जगह पे लिखा हुआ था कि बाल्कन वॉर्स हो गई या फिर अफ्रीका में पॉवर्टी हो गई, वो सारा का सारा जो है जो हमारी वो है डेवलप्ड वर्ल्ड है या वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनका क्वेस्ट है अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए। तो ग्लोबल नॉर्थ साउथ का जब लिख रहे हैं तो आई थिंक हमें थोड़ा लिटरेचर से स्टिक रहना चाहिए बजाय इतना फैक्चुअल डेटा या मैप बनाने के। ठीक है, मेरा ओपिनियन है। लेकिन अगर जैसे बिल्कुल ऑब्जेक्टिव तरीके से बात करें, चलो एक टाइम पे पॉलिटिकल साइंस हटा दो, नॉर्मल हम बात करें कि जो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ में जो डिवाइड है वो है क्यों, तो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पहले तो जैसे कॉलोनाइजेशन वगैरह हो रखी है, तो तभी जब पहले हो गई, अभी तो मतलब प्री ग्लोबलाइजेशन के पहले तो डिवाइड तो तभी से ही आना शुरू हो गया थोड़ा। मेरे ख्याल से दे वर अर्ली बेनिफिशियरीज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये भी एक फैक्टर है। हाँ, बेसिकली अगर हम कॉलोनाइजेशन की बात भी कर रहे हैं, मतलब अगर कॉलोनाइजेशन की बात भी करें कि ग्लोबलाइजेशन की पहले की, तो ग्लोबलाइजेशन तो कोई प्रॉपर्ली ऐसा है नहीं ना कि इस टाइम में शुरू हुआ है। अगर कोई कॉलोनीज बनाने के लिए दूसरे साउथ में जा रहा है, वो भी तो एक तरह का ग्लोबलाइजेशन ही है कि वो नॉर्थ में यूरोपियन पावर्स थी, वो अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप में आते हैं, तो भी तो एक तरह से ग्लोबलाइजेशन ही है। वो ग्लोबलाइजेशन नहीं है ना, वो कॉलोनाइजेशन हो गई, वो इंपीरियलिज्म हो गया। ग्लोबलाइजेशन जब आप हाँ सॉवरेनिटी के साथ आप जब सब कुछ हो रहा होता है, ट्रेड वगैरह इधर उधर जारी होती है, तब आपके पास आप सॉवरेन नहीं हो ना, आप तो खुद उनकी कॉलोनी में आ गए हो, वो तो अपनी एक तरीके से अपने से निकाल के दे रहे हैं। शिवानी, मुझे लगता है नीलेश मतलब ये बोल रहा है कि एक क्लियर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं है कि आज से ग्लोबलाइजेशन शुरू हो गया। ये है। अच्छा, दूसरा कॉलोनीज का एस्टैब्लिश होना किसी का बहुत नॉइस आ रहा है। नॉर्थ साइड डिवीजन का एक रीजन ये भी हो सकता है कि नेचर ऑफ इंटरेस्ट है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो कॉलोनाइजेशन भी था, अगर हम पहले कॉलोनाइजेशन कहते हैं कॉलोनीज का एस्टैब्लिश होना, और अभी हम उसी को पोस्ट इंपीरियल वर्ल्ड में न्यू कॉलोनिस्ट वर्ल्ड बोलते हैं, तो बस मैं ये कह रहा हूँ कि ग्लोबलाइजेशन का कोई स्टार्टिंग एंड पॉइंट नहीं, जैसे विकास ने इलाबोरेट किया। दूसरा ये कि ग्लोबल नॉर्थ और साउथ अगर हम सारा लिटरेचर को हटा दें, तो बेसिकली अगर हम देखेंगे भी तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि जो ग्लोबल नॉर्थ है वो सारा रिच है, डेवलप्ड है, और ग्लोबल साउथ है वो सारा अंडर डेवलप्ड है या फिर डेवलपिंग है। उसमें ऐसा कुछ है नहीं कि ज्योग्राफी अलग है या फिर हिस्ट्री अलग है किसी की। बेसिकली इकोनॉमिकल फैक्टर्स या मींस ऑफ प्रोडक्शन जिसके बेसिस पे जो है डिफरेंशिएट किया गया है ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ को। लेकिन मुझे लगता है तो जो थोड़े हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं उसको भी पूरी तरीके से इग्नोर तो नहीं किया जा सकता। कॉलोनियलिज्म का भी काफी बड़ा फैक्टर है। मैंने तभी तो बोला कॉलोनीज, मैंने तभी तो ये वर्ड बोली जो उसने मतलब ये स्कॉलर था मार्टिन एल्ब्रो करके, उसने स्पेशली मैंने इसको इसलिए कोट किया था, ये कॉलोनियलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिफाइन करा था। मतलब एक तरह से अगर मैं बोलूं तो सरकास्टिकली इसमें डेफिनेशन दे रखा है, द प्रोसेस बाय व्हिच द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ सिंगल वर्ल्ड ग्लोबल सोसाइटी, जिस तरह से इसमें लिखा हुआ है। और उसने वहां पे मेंशन भी किया था कि दिस इज आल्सो नोन एज द कॉलोनियलिज्म इन द क्रिटिकल डेफिनेशन, मतलब क्रिटिकल वे में इसमें लिखा हुआ था। मैं थोड़ा इसको मतलब पूरा जो लिखा हुआ था उसको मैं लिख के डाल दूंगा ग्रुप में। ठीक है, तो कॉलोनियलिज्म एक फैक्टर है, ठीक है। एक जो उनका अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया वो भी एक फैक्टर है। और आइडियोलॉजी थॉट प्रोसेस जो उनको डेवलप कर गया। हेजीमनी भी एक फैक्टर है मेरे ख्याल से। हेजीमनी आइडियोलॉजी प्रोपेगेट करके हेजीमन बन गया ना। रॉबर्ट कॉक्स ने जो बोला था ग्लोबल हेजीमनी वाले करके, उसको डाल सकते हैं, ना नीलेश? ओके और क्या डाल सकते हैं इसमें? आई थिंक नियो कॉलोनियलिज्म वाला है ना, पॉलिटी। हाँ, न्यू कॉलोनियलिज्म एक ही हेडिंग के अंदर डाल देंगे संजय। पॉलिटी किस सेंस में आएगा शिवानी? पॉलिटी मतलब पॉलिटी इन दिस कंटेक्स्ट की उनकी गवर्नमेंट जो है वो काफी स्टेबल है। जैसे हमने डेवलप भी करना होता है ग्लोबल अपने साउथ वालों ने, तो तभी जैसे एग्जीक्यूशन में काफी डिलेज आते हैं और वो सब जैसे अपने। तो इसमें वो डाल सकते हैं क्या, सॉफ्ट स्टेट और ओवर डेवलप्ड स्टेट वाली बात? सॉफ्ट स्टेट वाली तो आ जाएगी आई गेस, ओवर डेवलप्ड भी आ जाएगा। मतलब हम अपनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट नहीं कर पाते तो हम ऑटोमेटिकली रेस में पीछे हो जाते हैं।
तो और डिवाइड बढ़ जाता है, हाँ बोल सकते हैं ना। हाँ क्योंकि हाँ क्योंकि उधर तो स्मूथ फंक्शनिंग है, प्रेशर ग्रुप्स की भी और पार्टीज की भी अपना कॉम्प्लिकेटेड सा। MNCs का भी रोल डाल सकते हैं ना कि हाउ दे आर इन्फ्लुएंसिंग द पॉलिटिकल राइट स्ट्रक्चर। राइट तो राइट आई थिंक इसके अंदर वो था ना रमेश ठाकुर, तो उसने वो बुक लिखी थी ना डार्क साइड ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। उसमें ये लिखा था, वन फॉर एवरी $1 ऑफ लीगल ट्रेड टू डेवलपिंग कंट्रीज, $10 ऑफ इलीगल मनी गोज टू द डेवलप्ड कंट्रीज। एक उसने ये रमेश ठाकुर ने डार्क साइड ऑफ ग्लोबलाइजेशन में लिखा था कि हाउ दीज MNCs जब वो कुछ इन्वेस्ट कर रही हैं तो वो कितना एक्सट्रैक्ट कर रही हैं। राइट। और एक ये भी कर सकते हैं कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे WTO है, ठीक है, उसमें जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको ज़्यादा इंसेंटिव मिले हैं डेवलपिंग के बजाय। मतलब वैसे कहने को तो मिले हैं, लेकिन वो भी एक फैक्टर है। असिस्टेंट विकास अटैच। विकास तुमने एक पॉइंट बोला था ना रॉबर्ट कॉक्स वाला, वो मिल गया मेरे को। मैं एक्चुअली उसके फेवर में इसलिए अगेंस्ट उसके अगेंस्ट में इसलिए कह रहा था कि रॉबर्ट कॉक्स का एक वो था प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी, जो उन्होंने ग्लोबलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा था कि इफ यू आर असेसिंग द सोशल प्रोसेस दैट कैन लीड टू द इमेजिनरी चेंज एंड चैलेंज द प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर। तो मतलब वो बेसिकली जो अभी वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है, जो ग्लोबल नॉर्थ और साउथ वाला, तो वो सोशल प्रोसेस के बेसिस पे जो है उसको चैलेंज ऑलरेडी कर रहे थे वो। मतलब उन्होंने इनिशियली स्टार्टेड कि ग्लोबलाइजेशन की ग्लोबल नॉर्थ और साउथ का डिवाइड कैसे हो रखा है, जो तुमने कहा था। बट फाइनली जब वो अपनी थ्योरीज के एंड में आते हैं, तो उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग की थ्योरी दी थी। अच्छा। कि एक प्रोसेस हो सकता है जहाँ पे हम सोशल प्रोसेस को मतलब डिग्निफाई करके प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं। जो अभी ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ का वो आ रखा है, डिफरेंशिएशन आ रखा है। मैंने तो जो शुभ्रा मैम के नोट्स थे ना, उसमें जो मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ IP है उसके अंडर रॉबर्ट कॉक्स ने रॉबर्ट कॉक्स मतलब मार्क्सिस्ट, वो तो मैं कह रहा हूँ रॉबर्ट कॉक्स वो मार्क्सिस्ट नहीं थ्योरिस्ट भी था। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। तो उन्होंने उसमें बोला था ना कि जो US है उन्होंने लिबरल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर इसलिए लाए ताकि उनकी हेजिमनी बरकरार रहे, ठीक है, और US इज द बिगेस्ट बेनिफिशियरी। हाँ ये भी थे। बट उसके मतलब एक उसका काउंटर पॉइंट उसने खुद ही डाला था, तो मतलब मतलब मेरे हिसाब से डालना चाहिए, बट पूरा पता नहीं मेरे को। मतलब मैं उसके काउंटर से मतलब अवेयर नहीं था, वो वाली चीज मेरे को पता नहीं थी, इसलिए मेरे को पता नहीं था, इसलिए कह रहा था। ये एक्चुअली मैंने भी आज ही पढ़ा था, जॉन बेली स्मिथ में जो बुक थी उसी में पढ़ा था मैंने आज वाला पॉइंट। मैं उसका फोटो खींच के डाल दूंगा। हाँ थैंक यू। नीलेश प्लीज डाल देना, क्योंकि बोलते रहते हो डालना, पर नहीं आता। नहीं मैं कर दूंगा। मैं कर दूंगा। तुम्हारे पास जो भी है ना सब हमको दे देना, हम सब कॉपी कर लेंगे। एक्चुअली पता है इसमें ना, इसमें लास्ट में एक वो भी था, अगर हमें आखिरी में डालना पड़े इसका, जो तुम्हारे ये मार्क्सिस्ट का वो था बिल वैगन करके, ही वाज अ मार्क्सिस्ट, बट इन्होंने जो मार्क्सिस्ट स्कूल था उन्हीं को क्रिटिसाइज करके कहा था कि जो कॉलोनीज बनी है वो एक तरह से मतलब कैपिटलिस्ट कंट्रीज ने जो कॉलोनीज बनाया है उनके वेलफेयर के लिए ही बनाया है। तो बेसिकली उन्होंने जो है वेलफेयर स्टेट की बात करी थी उसमें, तुम्हारी मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शायद वैसे तो ये उसमें मार्क्सिस्ट वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ था मैंने नोट्स में, पर इसमें भी शायद डाल सकते हैं हम लोग, अगर हमें मतलब काउंटर करना पड़े कि ग्लोबल नॉर्थ और साउथ के मतलब अगर कुछ अच्छे पॉइंट डालने पड़े कि ग्लोबल नॉर्थ और साउथ होने से क्या अच्छा हुआ है। क्योंकि अगर कोई भी ग्लोबल नॉर्थ या साउथ की बातें करेगा तो वो मतलब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स डालेगा कि साउथ में इतना पॉवर्टी है, साउथ में ये सब हो चुका है, या डिफरेंशिएशन इतना बुरा आ रखा है, नॉर्थ वाले डेवलप्ड हैं, उनकी इनकम अच्छी है। नहीं, मेरे ख्याल से डाल सकते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन मतलब सीधे सीधा पूछ रहा है ना कि फैक्टर्स बताओ, सिर्फ हमें फैक्टर्स क्या क्या है नॉर्थ साउथ डिवाइड के, मतलब कोई इम्पैक्ट वगैरह नहीं पूछा इसने, या उससे क्या गुड या बैड वो नहीं पूछा। ठीक है, मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं था, सॉरी। नहीं, इसने सीधा बोला कि आप सिर्फ फैक्टर्स बताओ। तो 4-5 तो हमने डिस्कस कर लिए, और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, या फिर इन्हीं से काम चल जाएगा। इसमें WTO का डाल सकते हैं क्या, कैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का डेवलप्ड कंट्रीज यूज करके दे कर सकते हैं भाई, यूज इट टू देयर एडवांटेज। बिल्कुल। तो फॉर एग्जांपल WTO एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, तो उसके जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है तो दे आर फेवरेबल टू डेवलप्ड कंट्रीज एंड अनफेवरेबल टू डेवलपिंग कंट्रीज। राइट। कि जो डी मिनिमिस रूल है। सॉरी समीप, यू कंटिन्यू। आयुष। हाँ मेरा हो गया। अच्छा हो गया। मैं कह रहा था ये भी आ सकता है कि ये वाला पॉइंट की जो ग्लोबल साउथ है उनका जो से है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में या फिर मतलब जो भी इंटरनेशनल बॉडीज में वो बहुत ही लिमिटेड है। मतलब मतलब जो भी मतलब कोई वो होता है इंटरनेशनल, कोई भी कन्वेंशन होते हैं, कुछ भी होते हैं, जैसे अगर पेरिस क्लाइमेट ही बोले हम लोग, तो जिस तरह से मतलब उसमें जो हेगेमनी जो डेवलप्ड वर्ल्ड की है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब उसको वो करते हैं, माउंट करते हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशन
डिसीजंस हो गए वर्ल्ड वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, उसमें हाँ उनका इतना बड़ा से होता है कि जिसकी वजह से वो ऑलरेडी लेफ्ट आउट फील करते हैं। हाँ तो हाँ इसकी वजह से ही मतलब एक वो आता है ग्लोबल नॉर्थ साउथ डिवाइड। आई डोंट नो स्पेसिफिक वर्ड क्या बोलना चाहिए इसके लिए लिटरेचर में, बट समझ गए ना मतलब मेरा हाँ पॉइंट क्या हाँ, है। समझ गए। मतलब वो The point उनका इन्फ्लुएंस नहीं रहता वही ग्लोबल वाला इंस्टीट्यूशंस में, और फिर अल्टीमेटली वो पीछे रह जाते हैं, मतलब विशियस साइकिल टाइप है ये। हाँ ठीक मतलब है। उसका दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला, वो वाला ही आर्गुमेंट आई वाज सेइंग कि वो इन्वायरमेंट वाला मिस हो रहा है पॉइंट। एंड ब्रेटन वुड्स वर्सेस नियो, सो दैट वुड आल्सो कवर द इकोनॉमिक वाला डायमेंशन, क्योंकि और वॉशिंगटन और पोस्ट वॉशिंगटन कंसेंसस, सो ऑल दिस विल शो कि हाउ द डिफरेंस हैज इमर्ज्ड राइट और व्हाई वी डिवाइड। राइट। अभी वो 2 पॉइंट मोनिका ने डाले वो भी अच्छे हैं। हाँ बट लेकिन पॉइंट्स तो अच्छे हैं, मुझे लगता है ये ब्रॉडली उसके अंडर नहीं आएगा क्या, कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अर्ली बेनिफिशियरी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और ये सब है, तो उसके अंडर टेक्नोलॉजिकल वाला पॉइंट नहीं आएगा, या इसका अलग से डालें? हाँ वैसे आइडियली तो वही आना चाहिए, तो उसी को एक्सपैंड कर सकते हैं, या फिर बहुत जनरल टर्म यूज करने की बजाय वी मेक इट इनटू 3-4 पॉइंट्स। और ये मिलिट्री वाला भी ठीक है, यूएस जो यूज करता है मतलब अपने मिलिट्री बेसिस अराउंड द वर्ल्ड, इसको डाल सकते हैं। हाँ तो मेरे ख्याल से फैक्टर्स तो काफी सारे हो गए अपने पास। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, और आज की डेट में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इज एवरीथिंग। राइट। तो वो मिडिल इनकम ट्रैप जो होता है, जो हमने शायद इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ा था, वो दे आर नॉट एबल टू मूव इनटू हायर इनकम। राइट। तो वो भी एक वो दैट आल्सो वाइडन्स द नॉर्थ साउथ डिवाइड। या ऑल्सो एक इसमें ये भी डाल सकते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज आर रिलक्टेंस टू ऑनर देयर promises also, like they promised to transfer technology and fund to developing countries, right, but they didn't do it, like their hypocrisy, something like that. और किसी को कोई फैक्टर ऐड करना है क्या, कुछ रह गया क्या? पलाश, संजय? तो हमने ब्रॉडली क्या क्या फैक्टर्स लिए हैं? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल और मिलिटरी। अभी मिलिट्री। महफूज ने भी एक पॉइंट डाला है, सोशो कल्चरल होमोजेनिटी इन नॉर्थ एंड हेट्रोजेनिटी इन साउथ, ऐसा भी कंसेप्ट डाल सकते हाँ ये कल्चरल सोशल कल्चरल की इनसिक्योरिटी डायलेमा नहीं है उनके, हैं। ठीक है। इंटरनल क्राइसिस नहीं है। विकास आई एम सो सॉरी, वो रॉबर्ट कॉक्स वाला तुम्हारा पॉइंट सही था, मैं मिल गया मेरे को। एक्चुअली वो जो मैं बता रहा था क्रिटिकल थ्योरिस्ट का था, वो बीच ठीक है। में शायद मिस हो गया था रीड करने में। वो तुम्हारा पॉइंट सही है, वो आ सकता है, वो रॉबर्ट कॉक्स का आएगा वो। ओके, थैंक यू। बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी में वही था, वो पूरा पूरा जो हेगेमन आएगा और वो उसके बेसिस पे जो है अपना पूरा वर्ल्ड ऑर्डर को शेप कर देगा। अगर दो होंगे तो वो अपने बेसिस पे करेंगे। इन शॉर्ट की वो अपने बेसिस पे ही मतलब पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को शेप करते हैं। तो तुम्हारा राइट पॉइंट सही है वो। राइट, थैंक यू। तो इसका कंक्लूजन बता दो एक बार, फिर अपन चलते हैं आगे। हेलो। हेलो। हाँ मैं बोल रहा था वो सोशियो कल्चरल वाला फैक्टर है, इतनी इमिग्रेशन के बाद वो फैक्टर अभी रेलेवेंट रहेगा क्या? तो ब्लैक और वो तो चल ही रहा है, और फिर लेकिन मुस्लिम जैसे और वो फ्रांस का भी चल ही रहा है। महफूज ने बताया ना, सोशियो कल्चरल में ये फैक्टर डाल सकते हैं कि वो ब्रॉडली होमोजीनियस है, जो सदर्न कंट्रीज है वो थोड़ी हेट्रोजीनियस है नहीं, कंपोजिशन में। उनका भी स्टेबल इसलिए कि उनकी पॉलिटी उनको मतलब बैलेंस कर पा रही है। आखिर में वो सोशियो कल्चर में भी कॉस्मोपॉलिटन हो ही चुके हैं, मतलब इतने डिफरेंट रेस ग्रुप्स और उसके बाद। ये यूनिवर्सली ट्रू नहीं है ना, जैसे अभी साउथ में अगर तुम देखो, रिसेंटली इथियोपिया क्राइसिस हो रहा था, जो टिग्रे क्राइसिस अगर पढ़ा हो तो देखो मतलब अगर अफ्रीकन कंट्रीज देखे तो देर मल्टीपल ट्राइब्स जो या मल्टीपल एथनिसिटी वो है, ग्रुप्स हैं जो कंट्रीज बन गए, तो इस कारण ना एक होमोजेनिटी अभी भी नहीं होती। और दूसरा जो वेस्ट है वो प्राइमरी, जैसे नहीं, यूएस है मैं बोल रहा वो हूँ कि दोनों में हेटेरोजेनिटी है। नहीं पलाश, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे जो यूएस है उसका मेनली अप्रोच क्या है, वो मेल्टिंग पॉट वाली अप्रोच रखते हैं ना वो। हाँ मैं वही बोला ना, आखिर में उनकी पॉलिटी उसको एडजस्ट कर पा रही है, तो बस यही है। हाँ, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या होगा इसका? अच्छा, और मैं बोल रहा था कि फैक्टर्स हमने अगर दे दिए, आखिर में हम उनको उसका इफेक्ट भी बताना पड़ेगा ना, आखिर में फैक्टर से हुआ क्या है नॉर्थ साउथ डिवाइड के बाद। आई थिंक कुछ रेलेवेंस एनालिसिस तो लगेगा ही उसमें। नहीं, मेरे ख्याल से स्टेट सीधा सीधा बोल रहा है ना कि जस्ट इलैबोरेट द नहीं, वो फैक्टर्स। तो बोल रहा है, लेकिन पीएसआर आंसर्स में एनालिसिस चाहिए रहता है। आपको दिया रहता है स्टेटमेंट, उससे आप दिखाओगे कि क्या वो क्वेश्चन बता रहा है आपको, और आप उसको इलेबोरेट करोगे। लेकिन आपको उसका एनालिसिस बताना पड़ेगा कि उसका इफेक्ट क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, या फ्यूचरिस्टिक क्या हो सकता है। तो वही ज्यादातर रहेगा ना उसमें। तो बीच बीच में एग्जांपल डाल के नहीं चल सकता काम? आई थिंक इस क्वेश्चन में कंक्लूजन में डाल सकते हैं शायद वो।
हाँ कंक्लूजन में डाल सकते हैं, बट जो बॉडी होना चाहिए वो मेरे ख्याल से फैक्टर्स ही रहने चाहिए। हाँ एंड body- एंड ज्यादा से ज्यादा फैक्टर्स डालें तो बेटर रहेगा, बजाय कि किसी एक फैक्टर को हम इलैबोरेट करें। तो मतलब हर फैक्टर को आपको लिखना है विद एग्जांपल्स, एंड ज्यादा फैक्टर्स पे आई गेस विल गेट मोर मार्क्स। हाँ लेकिन एंड अल्टीमेटली, टुवर्ड्स द एंड हाँ अल्टीमेटली जो उसका लुक है वो ऐसा मतलब जीएस जैसा ना आए, थोड़ा पैराग्राफ मोटे मोटे रहे, मतलब ये है। हाँ मतलब हम लोग जो भी वर्ड्स यूज कर रहे हैं तो राइट राइट मतलब आप जहाँ राइट। स्कॉलर डाल सकते हैं स्कॉलर डालें, टर्मिनोलॉजीज यूज करें ऑल साइंस की। कंक्लूजन, तो वैसे अच्छा अगर कंक्लूजन हम जो इसमें करें हाँ बोल समीप, अगर जैसे कि गैप रिड्यूस हो रहा है, जैसे कि ये एससीओ ब्रेक और ये जो हम जो साउथ वाले के इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सब के होने की वजह से उसके बाद जो है इंडिया चाइना की जीडीपी ग्रोथ हो रही है, डेवलप हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं गैप कम हो रहा है क्या? गैप तो कम हो ही रहा है, हाँ हर लेवल हाँ पे कम हो रहा है। मतलब वो मेरे ख्याल से कुछ जो कंट्रीज हैं जैसे इंडिया चाइना वगैरह, दे हैव बीन डेवलपिंग और अभी चल रहा है। चाइना जैसे काफी हद तक गैप कम किया है, बट यहाँ पे दे टेकन नॉर्थ और साउथ को दो एंटिटी लिया है। तो लार्जली देखेंगे अगर हम साउथ को, तो वो जो गैप है वो अभी भी है नॉर्थ और साउथ के बीच में। मेरे ठीक है। ख्याल से उस पे क्वेश्चन पेरिफेरी एज्यूम करके चल रहा है कि क्वेश्चन में एक एजम्पशन है कि देयर इज अ डिवाइड बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ। वो आपसे फैक्टर्स पूछ रहा है कि क्यों वो डिवाइड। तो मेरे ख्याल से हम एक कंक्लूजन में डाल सकते हैं कि जो डिवाइड है ना वो धीरे धीरे कम हो रहा है। हाँ ये कंक्लूजन में डाल सकते हैं, करेक्ट। मतलब हम जो भी इनोवेशन करना है अपनी तरफ से वो कंक्लूजन में करें तो बेटर है बॉडी की वजह। और किसी को अगर कोई स्कॉलर याद आ रहा है तो वो उसको भी कोट कर सकता है। हाँ मतलब मतलब फैक्ट्स हैं इसके लिए कि कम हो रहा है। कम हाँ फैक्ट तो यार, ये इसके लिए ना, इसके लिए आई थिंक मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स में शायद समीर अमीन का था ना, तो उसने जैसे इंडिया टाइप की कम कंट्रीज को, एक तो जैसा कोर था, पेरीफेरीज था उनके बीच में, इंडिया चाइना जैसी कंट्री को सेमी पेरीफेरी बोला था। तो वॉलस्टीन ने बोला व्हाट था दे ना। आर डू, हाँ शायद वॉलस्टीन था। तो उसने शायद बोला था। मतलब क्रिटिसिज्म में मतलब मैंने इसको पढ़ा था, बट आई डोंट नो इसको यहाँ कैसे यूज करें। तो उसने ये बोला था कि ये ऐसी कंट्रीज जो है ना, वो रादर देन साइडिंग विद द लीस्ट डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज, दे आर साइडिंग विद द डेवलप। डेवलप कंट्री, डेवलप मतलब कोर के साथ साइड कर रहे हैं। तो लेकिन मतलब ये कंक्लूजन में सूटेबल रहेगा। हाँ मतलब वही मैं पूछना चाह रहा था कि ऐसा कुछ लाइन में एक्चुअली इसको हम थ्रो लोग वॉलरस्टीन के बारे में खूब सारा लिखने की बजाय सिंपली जो इकोनॉमिक फैक्टर्स की हम जब बात करेंगे तो वी कैन राइट कि डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट हुआ है, एंड इट इज बेसिकली डेवलप्ड कंट्रीज देमसेल्व्स आर रिस्पांसिबल फॉर इट। और उसने ये बोला था कि जो सेमी पेरिफेरी कंट्रीज हैं जैसे इंडिया टाइप की, तो दे एक्ट एज अ कुशन, दे एक्ट एज अ बफर। करेक्ट करेक्ट। हाँ इस तो लाइन में नॉर्थ ये भी लिख साउथ सकते हैं ना कि हाउ दे आर प्रोवाइडिंग ऑल्टरनेट इंस्टीट्यूशन लाइक ब्रिक्स हो गया, तो उनका इमरजेंस हो हाँ गया, तो दे आर चैलेंजिंग द सॉर्ट ऑफ हेजेमनी ऑफ द वेस्ट। ऑल्सो क्वेश्चन का जो लास्ट वर्ड है ना वो मत भूलना, इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, व्हाट आर द फैक्टर्स इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो कोशिश करना कि जो कंक्लूजन है वो भी थोड़ा ग्लोबलाइजेशन रिलेटेड उसमें कंक्लूड हो। हाँ करेक्ट। स्कॉलर्स लिख देंगे हम, अमर्त्य सेन वगैरह वाले। हाँ वो तो है ही। कैपेसिटी बिल्डिंग वगैरह पे बोल रखा है कि अपन साउथ जो है उसको ऊपर उठाया जाए। अगर हम गैप रिड्यूस की बात करेंगे तो हाँ करेक्ट करेक्ट भगवती ने करेक्ट। बोला है बस उसके लिए कि गैप रिड्यूस हो रहा है, बट मैक्सिमम रेस्ट वो बोलते हैं कि नहीं, सिर्फ टॉफी दी जा रही है, हमको कोई गैप नहीं रिड्यूस हो रहा। और शायद वो ये चीज़ अल्टीमेटली हम फिर मिस कर वी रहे हैव हैं। टू मेक ग्लोबलाइजेशन वर्क। राइट। हाँ अमर्त्य इसीलिए सेन जो डाल मैंने के अपने चाइना का आंसर, एग्जांपल डाल सकते हैं ना, वो बेस्ट रहेगा आई थिंक, अमर्त्य सेन का। शायद और एक फिर चीज, एक पॉइंट हम हाँ लगता है मिस कर रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, हाँ वो ये कि जो ग्लोबलाइजेशन का क्या रोल है उसके गैप को बढ़ाने में और उसको कम करने में, ये भी तो हम देख सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन को हम तो छोड़ दिए शुरू से ही, हमें रखना था ना। मेरे ख्याल से ये ग्लोबलाइजेशन की तो गैप है जो सारी नॉर्थ की हाँ, इश्यूज हमने आई मतलब थिंक साउथ को इम्पैक्ट कर रही है। एमएनसीज का बात किया था ना, तो वो तो ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड है। एंड में हमें एक सिलेक्टेड एग्जांपल पॉजिटिव रखने के लिए कि जैसे चाइना ने या एशियन टाइगर्स है, उन्होंने काफी उस चीज का एडवांटेज लिया, तो बाकी साउथ को भी उनसे मतलब इंस्पिरेशन या लेसन लेने चाहिए इनफैक्ट उस चीज चाइना तो को एक तरीके follow का करके। इंस्पिरेशन ही है यार, साउथ होके भी मतलब इट्स नाउ बिकमिंग द हाँ नेक्स्ट मतलब सुपर पावर। हाँ सारे एशियन टाइगर्स ले लो या चाइना ले लो, तो ये तो मतलब एकदम मॉडल है हाँ इस चीज के लिए। एशियन टाइगर ले लो, वो ज्यादा सही है। आई थिंक इस लाइन पे को कंक्लूड कर दो अमृता सेन डाल के, तो आई थिंक सफिशिएंट अच्छा है कंक्लूजन। देखो यार अपने 8 क्वेश्चन हो गए, ठीक है 5 रह रहे हैं, तो आज करना है कि किसी और दिन करेंगे।
यार कल कर लेते किसी हैं और दिन, कल देखो यार, हाँ चलो कल कर लेंगे, कोई कोई एक काम कर लेते ना, अगर ऐसा हो पाए कि कभी ज्यादा क्वेश्चन बच जा रहे हैं, मतलब अभी सजेशन है मेरा, कभी अगर ज्यादा क्वेश्चन बच जाते हैं तो हम दिन में एक सेशन लगा सकते हैं 1 घंटे का, ताकि रात को ये इतना लंबा सेशन ना चले, क्योंकि राइट ऑब्वियसली बात है कल भी क्वेश्चन आएंगे तो फिर कल के लिए भी क्वेश्चन हमें पूरे करने पड़ेंगे, और कल भी राइट। टाइम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और अभी या आगे फिर अगर एक आगे तो सेशन, टॉपिक बड़े बड़े ही हैं, सब में ज्यादा क्वेश्चन ही आने हैं। क्योंकि आई उसके थिंक बाद अभी इंटरनेशनल, बफर डे लेके चल रहे हैं ना हम लोग, तो अभी अभी उसमें क्योंकि कर लेंगे। बात ये ना, अभी अभी कम्युनिटी में ये हाल है, तो इंटरनेशनल रिलेशन में तो क्या ही हाल होगा, फिर तो बहुत ही लंबे डिस्कशन होंगे। तो या तो हम ये करें कि थोड़ा जो हमारी स्ट्रिक्ट डेडलाइन उसको फॉलो करें, या तो फिर एक सेशन सुबह कर लें, आधे 1 घंटे का, मतलब अगर हो पाए तो सुबह या दिन में, जब भी पॉसिबल हो, इन माय ओपिनियन। नीलेश का आइडिया अच्छा है, कर सकते हैं। और अल्टीमेटली देखो, वैसे यूट्यूब पे तो अपलोड कर ही रहे हैं, लेकिन कोशिश यही होगी कि यार मैक्सिमम लोगों को अपन रोप इन कर ले, क्योंकि डिबेट अच्छी हो जाती है। हाँ वो तो है बट स्टिल रात का अगर 2 घंटे का निकालें, क्योंकि क्योंकि देखो मेरे को लगता है कि अगर सारे पढ़ ही रहे हैं बैठ के, तो ये टाइम काफी प्रोडक्टिव होता है, जिसमें मतलब हम लोगों की पढ़ाई अच्छी हो सकती है। और बिल्कुल उस यार। टाइम पे अगर हम स्पेशली, क्योंकि हमारे दिन के ऐसा नहीं 12 घंटे हम पढ़ पाएंगे, हमारे मतलब सुबह का टाइम होता है, एक दिन का स्लॉट होता है, एक रात का स्लॉट होता है पढ़ने का। अब उस टाइम पे अगर हम डिस्कशन बहुत लंबा कर देंगे, हम एग्जॉस्ट हो जाएंगे, फिर उसके बाद डिनर करके हम अगर सीधा अपना पढ़ाई नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम तो है उसमें। तो मैं राइट। वही कह रहा हूँ कि ये लिमिटेड ही रखते हैं इसको, 1.5 घंटा। अगर टाइम मतलब अगर ज्यादा बढ़ जा रहा है तो वी कैन डू वन थिंग, कि दिन में एक सेशन रख सकते हैं 1 घंटे का, इसमें हम राइट। अगेन डिस्कशन कर ली जो बचे हुए हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम लोग स्लो डिस्कशन करें तो हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करना। जैसे मैंने आज का देखा बिना ना, क्वेश्चन, आज अपन ऑन एन एवरेज स्टार्टिंग में 15-15 मिनट ले रहे थे, ठीक है, लेकिन जैसे 8:20 हुए ना, तब मैंने देखा अपने 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। तो ये वो यार एक 80 मिनट एक 7 चीज ये क्वेश्चन, भी रहा ना, तो ये ठीक था मेरे वो ख्याल एक से। चीज वो एक चीज ये भी रहा ना कि बहुत सारों में तो इंट्रो या बहुत सारी चीजें सिमिलर ही थी। हम्म। ये भी एक फैक्टर, आई थिंक और क्वेश्चन करेंगे ना थोड़े डाइवर्स, तो शायद टाइम ज्यादा लगने ही वाला है अपने। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन दूसरा ये है ना, अपन ने जैसे अभी कल डिसाइड किया था, और आज अगर देखा जाए तो कंपैरेटिवली थोड़ा अच्छा इंप्रूवमेंट है, मतलब जैसे हाँ अपन, ये तो है। हाँ वो तो है, वो हाँ तो है। है ना, अपन ने मतलब काफी ठीक, जो ओवरऑल जो पेज था वो ठीक था, और मुझे लगता नहीं अपन ने कुछ ज्यादा मिस आउट भी किया है, मतलब जो हाँ आई थिंक, क्वालिटी थी वो भी ठीक थी डिस्कशन की। हाँ कि सब पे एटलीस्ट एक एक आंसर मिल गया आज अपने को, तो हो गया है। और अब जब जैसे नीलेश है या और कोई है, ये बढ़िया मतलब फोटोज शेयर करते रहो, हमारे स्कॉलर्स बढ़ाते रहो, तो बढ़िया डिबेट और भी अच्छी रहेंगी। ठीक है। ठीक है। चलो फिर देखते हैं ठीक है इसको बाद बच्चा, में, है ना, इसको, हाँ इसको देख के हम डिस्कस करेंगे बाद देख में। लेते ठीक है। हैं भाई। प्लीज जिसको अलाउड होते क्वेश्चंस, वो प्लीज उसमें मतलब थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग करके आ जाओ, मतलब वैसे सभी कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है, बट बाकी लोग जो पहले मतलब छोड़ के चले गए अभी है नहीं यहाँ पे, उनको भी थोड़ा लिख के डाल दो कि थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग करके एक हेडिंग वगैरह बना के रखो। राइट। और पहले ही मतलब जैसे जब क्वेश्चन आता है ना, तो एक मतलब एक बार अनाउंस कर दो कि ये मेरे अंडर था, मतलब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आगे से मतलब हमें ढूंढना ना पड़े। जैसे मुझे एक्सेल शीट में बार बार ढूंढना पड़ रहा था कि ये किसका क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है। वो सब टाल रहे थे ना कि कोई और बोल देगा मेरा छूट जाएगा। हाँ वही तो। चलो फिर चलो ठीक चलो है, वंडरफुल। ठीक है, ओके मैम। चलो देन, ओके ठीक है, मैं अपलोड कर देता हूँ उसको, ठीक है। ओके ओके। ओके, पार्ट 1 डाल दूँ क्या इसके आगे, गए कैसे, क्या करूँ इसको अपलोड करके, पार्ट 1 डालूँ। डाल दीजिए। अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू, बाय।